ہے، میں اس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں. جو اچھا حق اور سچ کی بات کرتا ہے وہ ٹھیک ہے. وہ یہ بولتا ہے جو یہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، میرے نبی سا تو آئی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے. کوئی بابا بھی ہمارے نبی سے اوپر نہیں ہو سکتا کبھی بھی، کوئی بابا بھی. ٹھیک ہے، جو ادھر نبی ہے ادھر آپ کے بابے، ہم ان کو جوتے کی نوک پہ اچھا، رکھتے ہیں. یہ نام کیا ٹھیک ہے، ہے آپ کا جناب؟ میرا نام احمد ہے. احمد نام ہے. جی. تو احمد صاحب، کیا کبھی کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی مسلمان یا کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں. ہے؟ نہیں. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ مرزا جونیئر جیل میں ٹھیک ہے. کہتا ہے کہ ٹھیک ہے. نبی کے اوپر کوئی نہیں ہے، ٹھیک بابا ہے. تے شاہی کوئی نہیں، نبی کے اوپر بابا کوئی ہے ہی کوئی نہیں. ہاں، وہ ابھی جو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بارتا ہے وہ نہیں. ٹھیک ہے. وہ جو اس کا نعرہ ہے وہ ٹھیک ہے. پھر میری بات سنیں. جو اب نہیں، ایک منٹ سنیں میری تو بات نا، یہ سنیں. ایک منٹ نا، ایک منٹ اور جی رک جائیں سنیں. ذرا. صاف ہی لو. اچھا، بات وہ کریں کہ جو سولڈ ہو، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگر تو میرے بھائی آپ اپنا وقت برباد کرنے اور ہمارا وقت برباد کرنے کے لیے آئے ہیں تو پھر ابھی بتا دیں تاکہ مطلب ہم پھر چپ ہو جائیں، پھر آپ اپنا ہی وقت برباد کر لیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو نہ ہی تو اتنا وقت ہے نہ ہی اتنا دماغ ہے کہ ہم اس کو برباد کریں. اگر تو کرنی ہے کوئی علمی کتابی گفتگو تو ٹھیک ہے، بسم اللہ کریں، بات کرتے ہیں. اور جو بھی بات کریں گے آپ پھر اس کی دلیل کے ساتھ بات کریں گے. علمی کتابی گفتگو تو وہ تبھی بنے گی نا کہ جب بھائی کتابوں سے حوالہ دیں. اگر قرآن کی بات کریں تو قرآن کا حوالہ دیں، حدیث کی بات کریں تو حدیث کا حوالہ دیں، کسی بابے بزرگ کی بات کریں تو بابے بزرگ کا حوالہ دیں. اور اگر تو آپ نے اپنا ہی حوالہ دینا ہے کہ نہیں میں کہتا ہوں نا مانو اس کو، بس میں نے کہہ دیا مانو، تو پھر میرے پاس وقت نہیں ہے بھائی. پھر اور یہاں دوست شاید کوئی ہو، وہ اس کے پاس شاید وقت ہو تو وہ بات کر صحیح. لے. صحیح. ابھی میں ابھی نماز آپ سے پڑھ ایک سوال، میرا سن. سوال سن سکتے ہیں ایک آپ؟ منٹ جی بھائی جی، سن لیں ذرا. اچھا، آپ بڑی تقریر جمعے والی کرنے آئے ہیں تو پھر آپ کریں. میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ. آپ جی سوال ہی جی نہیں سن رہے، آپ کیا چلے کریں گے؟ جائیں جمعے چلے والی جائیں تقریر جمعے میں کیا چلے کریں مولوی صاحب. جائیں چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. جمعے آپ کو والی کسی نے تقریر بلایا بھی نہیں ہے، جمعے میں اپنی کیا کریں. مرضی سے سوال جائیں سنتے نہیں ہیں وہاں پہ آپ، آ کے ویسے لگے جی ہوئے ہیں. چلے جائیں بھائی چل جان، ٹر چلے جی جائیں. جا ابھی آپ ابھی پھر تک میں رہے بیٹھے ہیں ہاتھے آپ جا ٹر جا آپ شاباش جا کھیڈ مل جا کے آپ ابھی تک ملتے دیاں بیٹھے ویڈیو ہیں. دے. چلے جائیں، گئے نہیں آپ؟ ہیلو اوپر لے کے جائے گا حضور والا شان. بھیا آپ جا رہے تھے، گئے نہیں آپ؟ اچھا یہ ہے کہ مبشر چلو بھائی پھر آپ ارشاد فرمائیں، مبشر بھائی چلے. آپ ارشاد فرمائیں، ہم سنیں. یہ دیکھیں یہ مرزیوں کے بارے میں مرزا جونیئر جیل میں کیا کہتا ہے، سنیں ذرا. ہمارے لیے کچھ نہیں. جی جی، عورتوں کو یہ کہیں کہ ہاں میں اس کا میں جواب دیتا ہوں. عورتوں سے یہ کہیں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو آپ خواہش کریں گے. جو قرآن حکیم میں ہے کہ جنتی کے لیے ہر وہ شے ہے جو وہ خواہش کرے گا. اگر کسی عورت کے لیے، یہ وہ جواب ہے جو محمدی صاحب نے بھی دیا، میں دیتا ہوں جواب. اگر کسی عورت کی یہ خواہش ہے کہ اس کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہو یا وہ ایک سے زیادہ اس کو بھی عورتیں ملے تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری کر سکتا ہے. ہاں وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ اس کو جنت میں مرد بنا دے اور اس کو دے دے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے نا. باقی جو اللہ تعالیٰ کے اپنا فنومینا ہے اس کے اندر تو اس کے اوپر کوئی قدر نہیں لگائی جا سکتی نا. کہ اگر آپ کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی 2 آنکھیں، 1 ناک، 2 کان اور ہونٹ اور یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، میں چاہتا ہوں جی میری جنت کے اندر جو ہے نا وہ ببر شیر والی شکل بن جائے تو قرآن و حدیث میں ثابت کریں. تو میں کہوں گا ایسا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کر دے. کہ سن لیا آپ نے؟ یہ صرف ایک سٹیٹمنٹ اس کی سنائی ہے. جی استاد محترم معذرت ہو، یہ نومی جاٹ صاحب جو ہیں یہ کوئی نئے جناب اس کے متھے لگے ہوئے ہیں، یہ بھی کچھ ویڈیو سننا چاہتے ہیں، ان سے بات کر لیں آپ. تو نومی صاحب سے بھی بات کرتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ اصل میں یہ لوگ سنتے نہیں ہیں نا، ہماری نہیں سنتے. پھر یہ کہہ کے جان چھڑاتے ہیں دیکھو جی تم اپنی ہی تقریر کر رہے ہو، ہماری سن نہیں رہے.
तो इस वजह से हम अभी इनको टच ही नहीं ना करते। हम इनको टच उस वक्त करेंगे कि जब हमने इनसे जवाब लेना होगा। तो अभी हम अपनी बात कर लेते हैं, उसके बाद इनको भी दावत देंगे कि आप बताएं। अच्छा, आपने सुन लिया? लो जी, मरज़ई की माँ अगर जन्नत के अंदर जाके अल्लाह से सवाल करेगी कि अल्लाह मुझे एक से ज्यादा शोहर चाहिए या एक से ज्यादा हूरें चाहिए, तो वो अल्लाह उसको दे देगा, उसकी ख्वाहिश पूरी कर देगा। ये है मरज़इयों का अकीदा, ये है मरज़इयत का दीन। अब कोई भी आ जाए, मिर्जा जूनियर जेलमी का फॉलोवर मरज़ई, तो आ जाए मुझे बताए कि उसकी माँ को 4 शोहर मिलेंगे कि नहीं अगर उसने ख्वाहिश कर दी। चलें जी, कोई भी बात कर सकता है। हाँ जी, भाई ये नीचे हमजा नुमान साहब हैं शायद। कोई नहीं, मिर्जा जूनियर जेलमी का फॉलोवर, कोई हमायती, कोई दिफा करने वाला, कोई मरज़ई, बस नस बच गए हो। जी नोमान जट साहब, आप अपना म्यूट खोलें और बात करें। जो कुछ आपको जनाब एतराज़ात हैं, ये हमारे उस्ताद मोहतरम हैं। जी आपसे बड़ी जनाब, आपको बड़ी अच्छी तरीके से जो है वो सवाल जवाब आपसे करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या फ़र्क है मिर्ज़े में और मुसलमानों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे कोई इतराज़ात नहीं है, ठीक है। मैं तो काफ़ी देर से सुन रहा हूँ, मुझे कोई इतराज़ात होते तो मैं बोल देता हूँ। जो बात थी वो मैंने पहले कर ली है। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि यार अगर कोई बात कर रहा है तो उसकी सुन ले फिर वो बेचारे की। तो बस यही है जनाब। मिर्जा कादियानी भी ऐसा ही था, तो मिर्जा जूनियर जेलमी भी ऐसा ही। इन दोनों मिर्जों की अपनी एक ट्यून, अपना एक मजहब, अपना ही दीन। हाँ जी। तो जब हम इन मरज़इयों से पूछते हैं कि हाँ भाई बताओ, जवाब दो, तो आगे से एक ही जवाब पकड़ा हुआ है, जाओ जी अकेडमी में जाओ, तो उधर जाके पूछो। चल, जब अकेडमी में जाते हैं तो वो आगे से दरवाजा बंद कर देता है, वो कहता है नहीं अंदर तुम्हें नहीं घुसने देना। बंदा पूछे तो फिर किससे पूछे जी? और ये मरज़ई हैं, 24-24 घंटे उसका बैठ के दिफा करते हैं। हाँ जी, वो कहते ना पैरों में मिट्टी भी नहीं पहन देंगे। तो जब पकड़े जाते हैं, जब इनको कोई गिरेबान पकड़ के पूछता है, ओ जवाब तो दो यार, तो दौड़ भज जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको सुनाता हूँ इसकी एक करतूत। कहता है कि जनाब तौहीद के बाद जो नंबर है ना, वो है क्या? सेक्स का। ये सुने जरा। मैं इसीलिए कहता हूँ, मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है ना, अकीदा तौहीद के बाद अकीदा तौहीद सबसे पसंदीदा। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। मैं इसीलिए कहता हूँ, मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है ना, अकीदा तौहीद के बाद अकीदा तौहीद सबसे पसंदीदा। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। आप बताएं मुझे, ये आपको किसी एक नुक्कड़ से भी मुसलमान लगता है? ये कहता है मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है ना तौहीद के बाद वो सेक्स है। बताइए किसी एक नुक्कड़ खांचे से ये आपको बंदा मुसलमान लगता है? कोई मरज़ई? ओए आओ ना, बोलते क्यों नहीं हो मरज़इयो? मरज़ई तो इधर भाई कोई भी नहीं है, ठीक है। अल्लाह माफी दे, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है हम। लेकिन उसकी और नहीं उसकी भाई, बात आप करने का मिर्ज़ई मकसद हैं, नहीं आप आपने कैसी समझे बात है। कर रहे हैं? आप नोमी साहब, आप मिर्ज़ई हैं, आपका अकीदा मिर्ज़इयों वाला है। हम नहीं, अकीदा जिसका एक मिर्ज़इयों वाला उसको मिर्ज़ई कहते हैं। सफीर भाई एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, इनको ना गलत फहमी असल में नोमी साहब को ही है। मरज़ई भाई कोई बड़ा कोई तगमा नहीं है कि जो हमने आपके गले में डाल दिया है। ये मरज़ई से मुराद होता है जो मिर्जा जूनियर जेलमी से प्यार मोहब्बत करता है, उसको हम मरज़ई कहते हैं। शायद आप गलत समझे हैं नोमी साहब। सर जाहिर आपको ना साहब माइक म्यूट करिए। नमाज हो, अभी अजान हो गई है, मैं जा रहा हूँ। आपको सलूट है
क्योंकि मैंने बात करनी थी, बाकी वो भाई साहब ने ना ऊपर सफीर साहब ने बात ही नमी खत्म कर साहब दी है। नमी साहब आपने चले जाना है, एक मेरी भी बात सुन जाए जाते जाते, मेहरबानी होगी। आपने हमारी सुना दूं? सुनी नहीं, आपने मुझे पहले बात करने से पहले ही आपने इतना नहीं बड़ा नहीं, वो टैग लगा मरज़ई दिया का हमारे जवाब ऊपर। ले लें आप। मिर्ज़ा खंजीनियर साहब खुद कहते हैं जनाब कि मैं वो मंगोलों की औलाद हूँ जिन्होंने आपके औलिया अल्लाह काटे हुए हैं। सकूत बगदाद पढ़ा है कभी वाकया आपने, सकूत बगदाद वाला? और नहीं खुद ही भाई, मैं कहते नहीं हैं पढ़ा। जनाब कि जो अपने जाली नस्ब पर फख्र करे उसे चाहिए कि अपने बाप को उज़्व तनासुल काट के मुंह में रख ले, शर्मगाह मुंह में रख ले। तो उसने अपने ना जाली नस्ब पे फख्र किया हुआ है, उसने खुद को मंगोलों से निस्बत दी हुई है, तो इसलिए हम आपको मिर्ज़ई कहते हैं, समझे हो कि नहीं? जैसे मिर्ज़ा कादियानी कहता था मैं मंगोलों की औलाद हूँ, इसी तरह मिर्ज़ा जूनियर जिलमी भी कहता है मैं वो मंगोल हूँ जिन्होंने आपके औलिया अल्लाह को काटा हुआ है। ठीक है ना, समझ गए आप? अब आप मिर्ज़ई तो ठहरते हैं। भाई मेरी बात सुने, काफ़ी टाइम से मैं इधर बैठा हूँ अब्रॉड के ऊपर, ये होस्ट भी हैं ठीक है, और ये सुल्तान भाई भी हैं, इनसे भी बात करके इनसे पूछ लें मैं कौन सी इस बंदे की ऐसी बात के ऊपर जो है ना मैं एग्री कर रहा हूँ ये मिर्ज़ा की, कि जिसकी बिना के ऊपर आप मुझे ये कह रहे हैं कि आप मिर्ज़ाई हो गए। डालने पर दफा मारे इस बंदे को, क्या करना है इस बंदे का फिर? तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि आपने इतना बड़ा टैग लगा दिया कि मेरी बात भी नहीं भी सुनी, शायद मैं कोई और बात करने लगा हूँ, आपने मुझे कह दिया कि आप मिर्ज़ाई हो मिर्ज़ाई हो। भाई जब तक आप उसके डिफेंड में आते रहेंगे हम तो आपको मिर्ज़ई कहेंगे। आप लाना डालें उस भाई पे, जब बात एक खत्म हो जाती है। बात मेरी बात सुने, आपकी ब्रॉड के ऊपर आना मिर्ज़ाई है? नहीं, जो बंदा उसके दिफा में तो फिर आता है या उसका फॉलोवर बनता तो है वो सारा दिन मैं मिर्ज़ई है। बात करने लगा हूँ ना, मैं भी बात करने लगा हूँ, आपको क्या पता कि मैं उसके हक में कर रहा हूँ, उसके खिलाफ कर रहा हूँ, या मैं क्या कर रहा हूँ? बात आपने बात सुनी नहीं है, आप पहले ही कर रहे हो मुझे। तैमूर भाई, आपके आने से पहले, उस्ताद मोहतरम के आने से पहले, ये इन्होंने जनाब कहा है जी कि मिर्जे को आपने इसके साथ क्यों जोड़ के रखा हुआ है? दिया हमने। और इन्होंने कहा जी कि मैंने तो उसकी नहीं अच्छी पूछा कि बातें ले आपने ली। इसके कहता साथ था क्यों वो जोड़ के मंगोलों रखा की हुआ है। औलाद है। एक मिनट मिर्ज़ा नौमी जेलवी भाई, भी ये यही वीडियो कहता में है कि सब वो कुछ मंगोलों की मौजूद है। औलाद है जिन्होंने आपके औलिया अल्लाह काटे हुए आपने जो हैं। कुछ बोला मौजूद है इस वीडियो में। आपने कहा है जी कि देखें मैंने इसकी अच्छी बातें ले लेनी चाहिए। मैं इसको बुरा नहीं कहूंगा, मैंने आपने मेरी ये बात बोला सुने, है। मेरी बात सुने, मैंने इसके हक में सिर्फ एक बात बोली है, वो ये बोली है कि क्या हम इसके हक में दुआ नहीं कर सकते कि अल्लाह पाक इसको हिदायत दे? उसके आइए अलावा मुफ्ती मैंने इसके साहब हक से में क्या आप बात इसका बोली है? इसका इसका मुफ्ती साहब से उसके आप अलावा पता मेरी करें कि बात आप मुझे साबित कर सूरों दें, के उसके बारे अलावा में मुझे कोई सूरों के बारे में दुआ करनी जायज है कि नहीं, ये मुफ्ती साहब आपको बता सकते हैं। मैं तो नहीं कर सकते मेरी भाई, बात नहीं कर सुने ना सकते आप, उसके दुआ, अलावा ये मुझे हदीस कोई में बात भी है। बता दें, मैं आपको मान लेता हूँ। जी जी बिल्कुल, दुआ करें आप, दुआ का किसने रोका है? शाह साहब बाकी भाई मज़ा आया आपकी ब्राड के ऊपर बैठ के, हाँ आपने नमी इतना बड़ा फतवा लगा दिया है। नहीं नहीं, अल्लाह फतवा पाक नहीं है मुझे मेरा बख्श दे, भाई। अल्लाह पाक मुझे ना ये अपने मिर्ज़ा करीब कर साहब ले, ना, मुझे मिर्ज़ा मिर्ज़ाई ना मारे। साहब अक्सर कहते रहते कि मैं फ़की देता हूँ, तो मिर्ज़ा की फ़की ख़त्म होगी, अब आ गया हमारा कैप्सूल। अब हम लोग इसके फॉलोअरों को कैप्सूल देंगे, उसको अपने पास बिठाएंगे, उसको प्यार से समझाएंगे भी ये फितने से बचो, सीधे राह पे आओ, और इंशाल्लाह हम भाई इसमें हम तो नहीं कामयाब है भी इसके होंगे। फॉलोअर, आपने हमारी फिर भी बात नहीं सुन रहे हैं, अल्लाह माफी दे। नहीं नहीं, अल्लाह पाक आपको भी अजर दे, हमें भी माफ़ करे, माशाल्लाह हमें भी आप अल्लाह यहाँ पाक। आए ना, नहीं, आप आपको एक काम क्यों नहीं करते, आप हमारे लिए भी दुआ कर देना, अल्लाह आपको भी हिदायत दे, जैसे आप मिर्जा नहीं जूनियर नहीं, की। आप तो मेरी बात सुने, आप तो हक पे हैं ना, आप तो मतलब 5-6 बंदे चल बैठे हैं, आप तो हक पे हैं। चलो ठीक हो, ठीक हो। तो बहुत फिर शुक्रिया। मेरे भाई ऐसा तरीका होता है कि जब आप और मैं मुत्तफिक हैं आपस में, तो फिर रोना किस चीज़ का? फिर बंदा चुप होके बैठ जाता है भाई ना। रोने की बात ही नहीं है, रोने की बात ही नहीं है, शायद मैं जो आप बात कर रहे हैं मैं भी वही करना चाह रहा हूँ, लेकिन आपने बगैर सुने आप अगले को कह रहे हो कि आप मरज़ई हो मरज़ई नहीं, हो। मैंने तो नहीं आपको मर्दई कहा। वो मर्दई भाई हम सफ़ीर भाई ने बोल दिया ना। मर्दई पता है क्या? इधर देखें, सुने ज़रा, ठंडे होके ज़रा सुने। गुजारिश ये है कि कोई भी ऐसी काम ना किया जाए कि जिसमें वो मद्दे मुकाबल को कोई गलत फहमी हो। जब आप लोग आके मिर्ज़ा जूनियर जेलमी का दिफा करते हैं या मिर्ज़ा सीनियर का दिफा करते हैं, तो ये लड़के जो है ना, ये जो ख़त्म नबूवत पे बराडें लगाते हैं, ये फौरी तौर पे आप लोगों की इस हरकत से समझ जाते बंदा के है।
क्योंकि आपके माथे के ऊपर तो नहीं लिखा कि ये बंदा कादियानी है या मरज़ई है या मुल्हिद है या क्या है। वो बंदे की मुफ्ती करतूत साहब बंदे को बता देती है कि असल में है मुफ्ती क्या। साहब एक छोटी सी अर्ज करूँ उसके पास जाऊँ मैं? अब मैं छोटी सी अर्ज करूँ आपके साथ जी जी इंसानियत जी के नाते। आप अभी माशाल्लाह नमाज पढ़ के आए हैं, आप उम्मीद है आप वुज़ू में होंगे। जी जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे ईमान से आप ये मुझे बता दें कि मैंने आपसे सलाम लिया, सलाम के अलावा उसके बाद मैंने आपसे अभी बात शुरू करने लगा हूँ, मेरी अभी बात भी नहीं शुरू भी नहीं अभी प्रॉपर तरीके से हुई। आप बताएं उसके अलावा आपने मेरे मुंह से कुछ सुना? नहीं मैंने तो आपसे अभी तक नहीं कुछ सुना। तो फिर कैसे मुझे कोई ये अभी ब्राड के ऊपर कोई भी बैठा शख्स या होस्ट या कोई भी मुझे मर्जियों के साथ अच्छा मतलब जोड़ सकता है? उस्ताद मोहतरम इजाजत है मैं ना कि याद करा दूँ आपको गला। हाँ जी हाँ, क्योंकि मेरे साथ तो ये मामला हुआ ही नहीं ना भाईजान। ये तो अच्छा क्या इसका नौमी नाम भाई है, ये सफीर भाई बराड के होस्ट हैं, यही बेहतर जान सकते हैं, मुझे तो नहीं पता जी बात है। अच्छा ये हमारे जमील भाई बैठे हैं जी। इन्होंने कुरान की कोई आयत भी निकाल के दिखाई है कि जी ये कब्रों वालों से मांगना जायज नहीं है। ये नहीं वो अकीदा जनाब मिर्जे का, वो इनको कुरान की आयत नहीं बता रहे हैं कि ये कुरान की आयत है, ये इसमें भी जनाब ये आप बात करें जी जमील भाई। ये देखें भाई वो भाई जो है ना मेरी वो बात बात इस सुने, करने मौजू जब पे मैं मैं वो बात करूं, बात मेरे करने पास लगा दलील था, है। मैं वो मसूद बात मेरी बात सुने, मैं वो बात करने लगा था, सुल्तान भाई ने मेरी वो बात पूरी नहीं सुनी। उन्होंने बोला कि जाओ भाई पहले कुरान पाक देखो, मोबाइल के ऊपर नहीं देखो। मैंने बात उधर ही ख़त्म कर दी है, मैंने नहीं उधर वो दोबारा बात की है। आपकी बात में दूसरे भाई से बात हुई थी, मैं पहले मेरी आपसे इस पे बात हुई थी, मैंने आपको ये आयत पेश की थी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। तो इस पर बात हो रही थी पहले, लेकिन आप इस बात पर मुत्तफिक नहीं हुए, तो फिर मैंने भी छोड़ दिया मेरी आपको। बात सुने, मैंने फिर आपको बताया कि आपकी मैंने बात जो देखा है है इसका दूसरे भाई तर्जुमा। से शुरू मैं होगी, आपसे मेरी बात उन्होंने सुने, फिर आपको दोबारा पेश मैंने की आपको है बोला आयत। मैंने इसका तर्जुमा देखा है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने बोला भाई मैं मोबाइल से नहीं, आप कुरान पाक से देख के मुझे जो है ना किताब के अंदर से देख के आप नहीं मुझे नहीं ना वो फिर वो मैं बताएं, आपको उसके यही बाद बता बात रहा हूँ ना, करेंगे। आपको उसके मैं बाद यही मैं बता चुप रहा कर हूँ गया हूँ, उससे मैंने उस बात पहले, के ऊपर बात ही नहीं की। इस मामले से पहले उसके आपकी ऊपर मेरे मैंने साथ बात ही बात नहीं हुई थी, की। जब ये बात हुई है ना कि मोबाइल से ना देखो, वो आपके दूसरे भाई से बात हो रही थी, लेकिन वो मिर्ज़ा जूनियर जैनी के भाई हवाले आप ही से से नहीं हो था रही वो। थी सुल्तान भाई, नहीं वो सुल्तान भाई आप ही से पहले हो रही थी। पहले आपकी मेरे से हो रही थी ना, पहले मैंने आपको आयत पेश की थी, उसके बाद आपकी किसी और से हो रही थी, कमरान भाई से हो रही हाँ थी। शायद वो असद भाई थे शायद वो। कमरान था, कमरान। अच्छा जी वो तो कामरान भाई लेकिन से बात हो वो, रही थी इनकी। हाँ जी कामरान भाई थे। जब उन्होंने ये बोला कि भाई मोबाइल के अंदर जो ऐप वगैरह है आप उससे नहीं, आप किसी किताब से कुरान पाक का तर्जुमा देख के उधर से मेरे से बात करें। जब उन्होंने ये बात बोली है उसके बाद मैं चुप करके मैंने बात को दोहराया ही नहीं है। मैंने बोला ठीक है भाई अगर नहीं मान रही तो बात खत्म, मैं अस्सलाम देखूंगा वालेकुम सब कुरान पाक भाइयों। से, उसके बाद बात करूंगा। वालेकुम ब्रदर सलाम मुझे रहमतुल्लाहि कुछ व कहने का तो मेरे मोबाइल के हवाले से वालेकुम सलाम। ब्रदर। अपना माइक म्यूट हाँ कर जी, लीजिए तमाम दोस्तों। उस्ताद मोहतरम बैठे हैं, बस एक बंदा जो है वो बात करे उस्ताद की तरफ से। मैं करना चाहता हूँ वर्ड्स एक, मुफ्ती साहब अगर इजाज़त दें तो मैं अर्ज़ करूँ कुछ। मैं ये कहना चाह रहा था कि मिर्ज़े ने जब ये आया नया नया, इसने बोला मोबाइल से कुरान पढ़ो, उससे डबल सवाब मिलता है। एक तो आप देख रहे हो और एक आपको, मैंने कहा मेरे भाई ने मुझे आके ये बात बताई कि ऐसे मैंने कहा देखो कुरान को हाथ में रख के पढ़ना सवाब है, हाथ में पकड़ना उसको देखना सवाब है, और जिनके सीनों में मौजूद है उनको उससे भी ज़्यादा सवाब है। और जब तुम्हारी मोबाइल की बैटरी ख़त्म होगी तुम्हारा सवाब तो बढ़ गया। कुरान हाथ में रखो, पूरा कुरान पढ़ो। ये लोगों को दीन के रास्ते से दूर करने आया, सीधी सी बात है। आप लोगों की बात समझ में नहीं आ रही। ये कुरान की ये जो तर्जमे वाली बात थी ना, एक मैंने की थी कि जो दोस्त ने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे इसने ट्रांसलेट मुझे इसकी ही ट्रांसलेट मुझे सेंड की, तो मैंने इसको कुरान से ओरिजिनल तर्जमा निकाल के दिखाया। ओरिजिनल और था, जो उसमें था वो और था। मुफ्ती साहब मैं अर्ज़ कर रहा था कि इसने कहा था कि तुम क्या से कहते हैं मरियम को और मरियम और उसका बेटा तुम्हारा कुछ नहीं तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, ठीक है, तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकते। ये उन लोगों के लिए था भाई मेरे जो नॉन मुस्लिम थे, उनके लिए कुरान का फॉलोवर, अल्लाह का फॉलोवर, नबी का फॉलोवर तो ये सोचते ही नहीं है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। और नीचे एक दानिश भाई कमेंट कर रहे थे, मैंने उनके लिए बात करनी है। ये अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह का ही कानून है कि मेरे बंदों के पास जाओ, मैं साबित कर सकता हूँ।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پہ گئے. تو بھائی ایک منٹ سر دیکھیں یہ جو آخری چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی بات سی بات سنیں، ہے. جو نیچے بندہ جی ٹائپنگ کر رہا ہو نا اس کی طرف نہ جائیں. وہ ٹیکس مزدوری کے لیے آتا ہے، اس کو نیچے رہنے دیں، اپنی مزدوری کرنے دیں. ٹھیک ہے، آپ اوپر جو میں بات چل رہی ہے سب اس چلے. کو چلنے دیں. جی حضرت اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب سفر پہ گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تھک کے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ مجھے سواری دے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا کہ جس پہاڑ کے ساتھ تم ٹیک لگا کے بیٹھے نا، اس کی دوسری سائڈ پہ چلو جو وہاں تجھے سواری مل جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ گئے دوسری سائڈ پہ، پہاڑ کی دوسری سائڈ پہ، انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے کہا اے عیسیٰ آ گئے ہو، سوری اے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام معذرت، اے موسیٰ آ گئے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ یار میں اس بندے کو جانتا نہیں، میں پیغمبر ہو کے نہیں جانتا یہ کون ہے، اور یہ بندہ میرا نام جانتا ہے کہ میں کون ہوں. خیر جب بیٹھے ان کو پانی پلایا، کہتے ہیں سواری چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تجسس میں آ گئے کہ اس کو یہ بھی پتہ میں سواری لینے آیا. انہوں نے بولا کہ ہاں مجھے سواری چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان کے، اس بندے نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک بادل کے ٹکڑے کو اشارہ کیا، انگلی کے ساتھ وہ زمین پہ آیا، اور آتے ہی اب پیغمبر کہہ رہا ہے، اب یہ نہ کہنا کہ یہ اپنے سے گھڑی ہے، پیغمبر کہہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں زمین پر آتے ہی وہ بادل کا ٹکڑا گھوڑا بن گیا، سواری بن گئی. تو کہتے ہیں میں نے ان سے عرض کی، مجھے تجسس ہوا، میں نے عرض کی کہ مجھے یہ بتائیں آپ کوئی اللہ کے ولی ہیں، کوئی پیغمبر ہیں، کون ہے آپ کہ اللہ نے مجھے میری اپنی مدد کے لیے مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا؟ آپ ایسی کون سی ہستی ہو کہ میں پیغمبر ہو کے نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں؟ کیا آپ نے کوئی چیلا کیا ہوا ہے؟ تو اس بزرگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار کرنے پہ اس بزرگ نے ان بزرگوں نے بتایا کہ نہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میں نے کوئی چیلا کیا ہے، نہ میں کوئی اللہ کا ولی ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں. میں اپنی ماں کا اتنی خدمت گزار بندہ تھا کہ جب میری والدہ کا آخری وقت تھا نا، انہوں نے مجھے دعا دی کہ یا اللہ میرے بیٹے کے اشاروں پہ پوری دنیا چلے، اس کو ایسا بنا دے، اپنا خاص بندہ بنا دے. کہتے وہ دن گیا اور آج کا دن ہے کہ میں پہاڑوں کو، سمندروں کو، ہواؤں کو اشارہ کرتا ہوں تو اللہ کے حکم کے مطابق وہ میرے کہنے پہ چلتے ہیں. اب یہ دیکھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، اللہ خود بھی تو دے سکتا تھا پیغمبر کو مدد، کیوں نہیں تھی؟ اللہ نے فرمایا جا میرے بندے کے پاس ہے، وہ تجھے دے گا. تو وہ اس نے اللہ کی عطا کیے ہوئے سے دیا، تو اس نے اللہ کے عطا کیے ہوئے میں سے ہی دیا. وہ اس نے کوئی اپنی دنیا نہیں بنائی، نہ وہ خود رب ہے. رب کی اجازت کے بغیر کوئی ولی اللہ کچھ نہیں کر سکتا. الحمدللہ میں سنی ہوں سب ان کے. اب یہ دیکھیں کہ اولیاء کرام کو غلط کہنے والے میری یہ بات کا جواب دو کہ 1400 سال پہلے نبی کا دین نازل ہوا، آج تک وہ دین اسی طرح چلتا آ رہا ہے، ہمارے تک اولیاء کرام نے ہی پہنچایا ہے. جن بابوں کو تم کہتے ہو انہوں نے ہی ہم تک یہ صحیح دین پہنچایا ہے. اگر اس وقت یہ جیسے مولد ہوتے تو شاید دین کی کئی راستے نکل آتے، لیکن یہ ان لوگوں نے آج تک مجھے یہ بتاؤ کس بابے نے ثابت کرو، کس بابے نے کہا کہ جی محمد رسول اللہ کی جگہ پہ یہ پڑھنا، جی میرا یہ کلمہ یہ نام پڑھنا، ثابت کرو. ارے تم لوگ اندھے ہو یار، کیوں نہیں سمجھ سکتے اس بات کو؟ انسان کو عقل و شعور دیا، ہر چیز دیا، کیوں نہیں مانتے اس چیز کو کہ بھائی کسی بابے نے آج تک اپنا کلمہ نہیں پڑھایا، اس نے یہی پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دین کی تبلیغ کرتے. اب 1400 سال پہلے سے جو اولیاء کرام چلتے ہیں، اللہ نے قرآن میں اولیاء کرام کا ذکر کیا. اب مجھے یہ بتاؤ، چلو آپ کے کہنے پہ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے کہنے پہ مان لیتا ہوں کہ چلے جی اولیاء کرام نہیں. اب یہ 1400 سال بعد یہ جو بچہ اٹھا ہے جس کو نہ دیکھ کے قرآن پڑھنا آتا ہے، ذلیل انسان جو سیکس کو پریورٹی دے رہا ہے دین اسلام میں، ابھی یہ شرم آنی چاہیے تمہیں آن لائن یہ بات کرتے ہوئے کہ میں جی سیکس میرا فیوریٹ ہے. ابھی ذلیل انسان کو کسی بھی مولوی کے پاس کسی بھی چل جائے، وہ کبھی بھی اس کے منہ سے سیکس نکلے گا وہ سمجھے گا میری توہین ہے، تو بڑے فخر سے لے رہا ہے جی میرا سیکس. اور کون سے مسلمان کے پیچھے چل پڑے ہو یار تم لوگ، کوئی خدا کا خوف کرو. اب یہ ولی ہے، یہ جو 1400 سال بعد اٹھ کے ہے، اس کو ولی مانتے ہو؟ یہ ولی ہے. اللہ نے قرآن میں ولی فرمایا، اور ولی وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے آج تک ان کی نسلیں بھی اسی اسلام پہ عمل پیرا ہیں، اور ہم بھی انہی کے غلام ہیں اور ہم بھی انہی کے عمل پیرا ہیں. تو وہ اصل ولی جنہوں نے دنیا کا تاریخ رقم کیا ہو، یہ نہیں ہے جو اٹھ کے آیا جو کہہ رہا ہے سیکس میرا فیوریٹ ہے. ابھی میں اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، کہتا جی ٹرانسجینڈر کرنا، اور مجھے سننے میں آیا کہ سرگودا میں جیلم میں اس نے ٹرانسجینڈر کا قانون بھی پاس کروایا. اور یار کون سا اللہ کا ولی ہے جو ایسا کرواتا ہے یار؟ وہ خدا نے عقل دی ہے. میں عرض کرتا ہوں میرے بھائی نے نا مجھے، وہ بھی اس کا فالوور تھا، تو میری اس کی بڑی بحث ہوتی ہے، میں اس کو بلاتا نہیں ہوں جب اس کا ذکر کرتا ہے. تو وہ اس نے مجھے ایک دن آ کے نا، جب یہ نیا مرزا اٹھا تھا،
उसने कहा यार बात सुन, हम तो बचपन से ये देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया मुबारक नहीं है, ये देख वीडियो। मैंने कहा ये कौन सी वीडियो लेके आ? कहता उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोए मुबारक बल्ब के आगे सामने रखा है तो उसका साया ओ मैं क्या, बंद कर इसको, बंद कर और मोबाइल में से ये डिलीट कर, दोबारा मेरे सामने ऐसा जिक्र ना करी। और यार गुंबद खजरा का साया नहीं है, हुजूर का साया नहीं है, तुम लोग कैसे फॉलोवर हो उसके जो इन चीज़ों को, एक बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बुलंद कर रहा है और एक उसको डाउन कर रहा है। और यार हम अल्लाह का रसूल कहते हैं, अल्लाह नहीं कहते, हम अल्लाह का रसूल कहते हैं। और तुम लोग ऐसे, यार तुम लोगों को अकल होनी चाहिए। अल्लाह ने, ये ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग उसके फॉलोवर हो तो हम तुम्हें भी अच्छा बोले। वो सही कह रहे हैं असद भाई, मिर्ज़ा भी जेल में जहन्नमी है, उसके फॉलोवर भी जेल में जहन्नमी, उसके बच्चे हैं। हकीकत बात, अकल के अंदो क्यों अपने दीन से खारिज हो रहे हो? कुछ देखो, पढ़ो उसकी वीडियो, तुम कहते हो ना एडिट की है, उसकी ओरिजिनल जाके वीडियो देख लो, फिर भी अल्लाह के फजल से उसको कुरान पढ़ना नहीं आएगा। वो कहती हैं तुम अपने बाबों को ले आओ, बड़े बड़ों को ले आओ, वो मेरे से मुकाबला नहीं कर सकता मेरे भाई। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं इस वक्त दुबई में हूँ, इन्होंने नया इसी की पार्टी का था जो नया वो उठा है इमाम मेहंदी बन के। उस गलीज इंसान को ये नहीं पता इमाम मेहंदी का ज़ोर सऊदिया में हो रहा है, पाकिस्तान में ये वाला मेहंदी क्या छक्कू लेने आया है, उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में आना इमाम मेहंदी नहीं है, उधर आना है। मैंने वो तो खुसरा सा उन्होंने ला के खड़ा कर दिया, कहता जी ये मेहंदी, मैंने कहा इसके हाथों पे मेहंदी लगने वाली हुई है, इसके हाथों पीले करो, मेहंदी लगाओ और किसी की घर की जीनत बनाओ इसको। उसके बाद मैंने दोबारा इसकी वीडियो नहीं देखी, मैं टिकटॉक के ऊपर ना ही यूट्यूब के ऊपर। इनको अकल आ गई है कि हाँ हजरत इमाम मेहंदी ने तो सऊदीया से आना था, ये तो हम पाकिस्तान से पैदा करके ले हैं। कैसे गलीज लोग हैं, इनको फॉलो करने वाले भी और ये खुद भी गंदे अच्छा दिमाग वाले एक गंदे कीड़े हैं इनके पास। डाई हार्ट साहब आए हैं। भाई डाई हार्ट अस्सलाम साहब वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं सुन्नी हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। रावलपिंडी से रिहायशी हूँ, दुबई में रहता हूँ, तो ठीक है। आपका इन दोनों मिर्जों के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ मैं है? इन दोनों को तो नहीं जानता, पर भाई ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया है। यार मुझे वो बुक बता दो जिसमें ये वाकया है, क्योंकि कुरान पाक में जहाँ तक मेरा इल्म कहता है ये वाकया नहीं है। जी भाई मेरे से मुखातिब है आप, मैं जी इंशाल्लाह जी, जल्द आपको पेश करूंगा। वो इस वक्त तो मैं ड्यूटी पे हूँ, मैं घर जाके मैं भी पूरा इस मैं वक्त ड्यूटी इसी पे हूँ। ब्लॉग मैं पे वैसे ही टिकटॉक यूज कल कर रहा था तो आपका वाकया सुनने में जी आया, जी तो मैंने कहा भाई जी से पूछ लूं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं प्रूव करूंगा भाईजान, मैं प्रूव करूंगा, टेंशन भाई नहीं, मैं कल इसी हाजिर, ब्लॉग पे इंशाल्लाह। मैं हाजिर। बेशक आप पर्सनल आ जाना, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी आर साहब, अभी आप ये बता दें जनाबों के मिर्जा सीनियर को आप क्या समझते हैं? सर मैं इनमें से किसी को कुछ भी नहीं समझता। नहीं मतलब क्या? मतलब सिंपल है, इनमें से किसी को कुछ भी नहीं समझता। अगर नबी करीम ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, अल्लाह ताला से अच्छा मांगो, सीधा मांगो। बाकी यानी ये इन मिर्जा बातों के जूनियर ऊपर जेलम वाला, देखो, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। अल्लाह वो ताला ने ठहर तो इंसान जाए को ना जनाब, दिमाग एक दिया मिनट है। एक मिनट, एक मिनट मेरी वो सुन एक लो ना। मिनट ठहर, सफीर वो एक भाई, मिनट ठहर जाए। सफीर और मेरी भाई, भी सुन लो, मेरी सफीर सुन भाई जी लो। जी जी, एक मिनट आई साहब, एक मिनट। यार सफीर भाई अगले बंदे को बोलने देते हैं, वो जितना बोलेगा ना उतनी वो बातें मिलेंगी, पहले अच्छा ठीक बोल हो लेने गया देते सर। हैं। इसका तरीका कार यही होता है। अभी तक आप तरीका ही नहीं समझे यार सफीर भाई, क्या हो गया? उनको बोलने दें, ये ठीक जितना हो गया, बोल बोलें सकते जी, हैं बोलने दें जी। बोलें जी आप। हाँ जी सफीर भाई, आप बात कर रहे हैं कि मैं इन दोनों को क्या समझता हूँ। मैं इन दोनों को कुछ भी नहीं समझता। मैं सिर्फ इतना समझता हूँ हमारा दीन इस्लाम है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो दीन दिया है, और उसमें कहा गया है कि आप कब्रों से नहीं मांग सकते, आप डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। हाँ, अगर कब्रों से मांगना है तो वसीला दे के मांग सकते हो। जहां तक मेरा इल्म, मेरा नॉलेज कहता है। जी आपने बात कर लीजिए, जी जी, जबरदस्त हो गया। अब माइक म्यूट कर लें। ये लें सर। तो ये हुई ना बात, मतलब ये कि वो आंदे ने कि बंदा दो तरीके से फंसता है, या अपनी तकरीर से या अपनी तहरीर से। जो चुप रहता है ना वो फंस नहीं सकता, कि ना ही कभी उसने कोई किताब लिखी, कोई तहरीर लिखी, कोई कमेंट भी उसने कभी नहीं किया, और ना ही मतलब वो आके कभी बोला कोई उसने।
तो कैसे फंसेगा जी? हमें कैसे पता चला अगले बंदे के सीने में क्या है? ये हुई ना बात। अब देखिए ना, आपने इतनी जबरदस्त तकरीर फरमाई है, तो आप फरमा रहे हैं कि कुरान पाक में तो अल्लाह पाक ने हमें कब्रों से मांगने को मना की है। वो आयत कौन सी है वो जरा मुझे दे दें, मेरे इल्म में नहीं। मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, मुझे कहीं नहीं मिला कि अल्लाह ने सहाबा कराम को मना किया कि इन कब्र वालों से ना मांगो जी। हेलो, चल एक मिनट, मैं हाफिज कुरान तो हूँ नहीं, मुझे आप 2 मिनट दें, मैं सारी डिटेल निकाल देता हूँ। बिल्कुल ठीक है, 2 मिनट जी वेट करते हैं। कुरान पाक का कब्र से मांगना, बिल्कुल ठीक। ये देखे ना, ऐसी इल्मी किताबी गुफ्तगू हो तो मजा आता है यार। ऐसे लड़ाइयों से क्या फायदा है? कोई मैं लड़ाई करने के हक में ही नहीं हूँ, मैं तो सिंपल खुद दीन सीखना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत आता है उसी के ऊपर अमल करता हूँ। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल बजा फरमाया है। मुझे बस 1 मिनट दे दें। नंबर के और कुछ दूसरे नंबर। ये कहते हैं अल्लाह ने अपने हबीब को सारे इख्तियारात दे दिए। हम ये कहते हैं कि अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु इख्तियारात। ये आप अपना माइक म्यूट करके करें, वो फिर अभी रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो फिर कॉपीराइट आ जाता है। आप हवाला तलाश कर लें कुरान पाक का। 2 मिनट, आप तो वीडियो देखनी शुरू कर दी आपने, तो आप तो कुरान पाक देखें ना, आप वीडियो देख रहे हैं। 2 मिनट गुजर, अभी 1 मिनट हो गया है। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, तमाम दोस्त टैप करते रहे ताकि बराड जो है गिर ना जाए। कल भी हमारी बराड 2 दफा गिरी है और बंद हो गया, आज भी 1 दफा गिरी है। आज वैसे मजा आएगा। वो चले तो नहीं गए? इधर ही है, हाँ इधर। जी दानिश मिर्जाई साहब, आपको मैंने 3 कॉलें डाली हैं, आप ऊपर आके सवाल कर लें जो आपने करना है। उस्ताद मोहतरम बैठे हैं, आपने बड़ी देर से टिप लगाई हुई है नीचे, और मेरा ख्याल है अभी भाई ने आपको म्यूट भी कर दिया। आ जाए ऊपर। 2 मिनट हो गए भाई, दे दे। और इंतजार करना है भाई डाई साहब। डाई साहब, हेलो। जी सर, मैं भी कौन सा कुरान पाक हाफिज तो नहीं हूँ, पर मुझे भी नेट से ही देखना पड़ रहा है। नहीं कोई बात नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको और वक्त चाहिए तो बता दें कि भाई ये वक्त चाहिए। मैं 1 मिनट, मैं क्योंकि कल मैं देख रहा था। लो जी 1 मिनट और जी। अच्छा, आप क्या कहते हैं, कब्र से मांगना जायज है? मुझे नहीं पता, आपने मुफ्ती है ना, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ। कोई बात है, आप ना वक्त जाया करेंगे। 1 मिनट आपने मांगा है मजीद। आप मुझे बता दें, छोड़े मेरे। अब
छोड़ दे मेरे नहीं मुझे ऐसे नहीं, छोड़ते नहीं है, छोड़ते मुझे नहीं है। अपने दीन मुझे जितना आप इल्म है मैंने उसके देखें मुताबिक बात की है ना। ये तो वो ही हुआ ना, छोड़ दें, मतलब अभी तक तो आप छोड़ ही रहे थे, तो जी ये छोड़नियां जो होती है ना, बड़ी बड़ी छोड़ो, यानी इतनी छोड़ो, बड़ी बड़ी छोड़ो कि जो पकड़ी भी ना जाए, नहीं ये नहीं काम करना, छोड़ना छड़ाना नहीं करना। तो आप ऐसा काम करें कि कोई इल्मी किताबी, मैंने कहा था टाइम आपने 2 मिनट मांगा, फिर 1 मिनट मांगा, अब वो 1 मिनट से भी नहीं बना, 2 मिनट से भी कुछ नहीं बना, तो नहीं जी तुम बताओ। ये असल में तरीका, आपको हमारी बातें लगती तो कड़वी हैं मोहतरम, लेकिन बात ये सच्ची है। अल हक्कु मुर्रुन, सच कड़वा होता है। कि ये कादियानियों का असल में तरीका है कि दावा वो लोग खुद करते हैं और दलील अगले बंदे से मांगते हैं कि दलील तुम दो। मुसलमानों के सामने आएंगे जब तो दावा कर देंगे, बाद में कहेंगे कि जब हम कहते हैं ना दलील दो, तो कहते नहीं दलील तो तुमने देनी है ना, तुम तो आलिम हो, फाजिल हो, मुफ्ती हो, मैं तो कुरान कोई नहीं पढ़ा, ये है वो है, तो मेरा तो नेट कमजोर है, मैं काम लगाऊं। ये ड्रामेबाजी कादियानियों की एक अरसे की हम देख रहे हैं। हमारी बातें आपको कड़वी लगती हैं, लेकिन सोचा भी तो करें ना कि काम आप कादियानियों वाले करते हैं, फिर आप हमारे साथ उलझते हैं। सर जब आपने दावा किया तो दलील तो आपने देनी है, हमने तो नहीं देनी। अब मैं आपको बताता हूँ ठीक भाई, सुन लेना यार, जी आपने जी मुझे कहा है बोलिए ना कि तुम बताओ, मैं बता रहा हूँ। जी बताएं, पर आप कायदानी का दावा नहीं ना कर सकते मुझ पे। अच्छा माइक म्यूट कर लेना, माइक म्यूट कर। अच्छा गुजारा ये है कि मुझे पता है आपने कौन सी आयतें लेके आनी थी, मैंने वो खोल के पहले ही रख ली हैं। वो आयतें जो कि कहा कि अल्लाह ने कहा कि इनको कहो कि ये तुम्हारे मुर्दे जो है ना वो मदद नहीं कर सकते। वो आयतें असल में मुशरिकीन के बारे में नाज़िल हुई थी, क्योंकि ऐसा कोई साहबी तो नहीं था कि जो कोई किसी मुसलमान मुर्दे की कब्र से या मुर्दे से मांग रहा था। ऑटोमेटिकली ये बात समझ आनी चाहिए कि ऐसा कोई साहबी तो नहीं था। और वो आयतें नाज़िल हुई थी असल में मुशरिकीन के बारे में, मुशरिकीन के मुर्दों के बारे में, तो उन्होंने फिट करनी शुरू कर दी। अच्छा ये फिर बाद में खारजियों का एक ग्रोह आया था, ये वही खारजी थे जिन्होंने मौला अली पाक को शहीद किया था। और मुल्हिदीन जो बिल्कुल दीन मजहब के मुनकिर थे, उन्होंने ये काम किया कि जनाब वो वाली आयतें कि जो मुसलमानों के ऊपर, जो मुशरिकीन के बारे में नाज़िल हुई थी ना, उन्होंने उनको फिट करना शुरू कर दिया मुसलमानों के ऊपर। इमाम बुखारी ने पूरा बाब बांधा इसके ऊपर। इमाम बुखारी ने बाब बांधा है, बाबू कत्लिल खवारिजी वल मुल्हिदीना बादा इकामतिल हुज्जती अलैहिम। हदीस नंबर है 6930, 6930 के अंदर, और इसके अलावा और भी वो पूरे बाब की हदीसों को आप, और तर्जमातुल बाब के अंदर भी आप इसको देख सकते हैं। फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा खारजी लोगों को बदतरीन खल्कुल्लाह समझते थे। कहते थे कि उन्होंने क्या किया कि जो आयतें काफिरों के बाब में उतरी थी, इनको मुसलमानों पर चिस्पा करना कर दिया। और ये खारजियों का, मुल्हिदीन का तरीका है ये, कि वो आयात के जो मुशरिकीन के बारे में नाज़िल हुई थी, इनको ये मुसलमानों के ऊपर चिस्पा करते हैं। अब मुझे बताइए कि आप भी वही काम करेंगे जो मुल्हिदीन और खारजी करते थे, तो आप में और खारजियों और मुल्हिदों के अंदर फर्क क्या हुआ? अब फर्क आप बता दें। चले जी अब आप बोले। मुफ्ती साहब, कुरान पाक की सूरत अल मदीना आयत नंबर 72। जी एक मिनट मुझे निकाल लेने दो। निकाल लें। एक ये कुरान पाक ओपन कर लिया। अल सूरत कुरान क्या है? अल मदीना आयत सूरत 72।
सूरत अल मदीना, ये कौन सी सूरत है? सॉरी मदहा। सूरत मदहा? मैं एक मिनट लिखता हूँ, टाइप करता हूँ। ना ही सूरत मदहा भी कोई नहीं, बेसिकली मेरी मदीना भी उर्दू कोई इतनी नहीं। अच्छी नहीं है, मैं टाइप किया नीचे। भाई आपको सूरत का नाम मेरे भाई आ नहीं रहा। नहीं आ रहा ना, मैंने नीचे टाइप कर दिया ना जो चीज। मायदा की बात कर रहा है सूरह मायदा, नहीं एक सूरह मायदा की बात मिनट यार, करें। एक मिनट यार, कोई ना बोले यार। यार सारा ही बेड़ा गर्क डिबेट दा कर देंदे हो बोल के विच यार। नहीं डिबेट नहीं है मुफ्ती साहब, ये डिबेट नहीं ये है। डिबेट इसी को कहते हैं जो दो बंदे बेसिकली जब मैं भी सुन्नी हूँ। दो बंदे जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं उसको डिबेट और ये इंग्लिश में। डिबेट नहीं है, ये मैं आपसे दो सीखना बंदे चाह जब रहा हूँ मुकालमा कर रहे होते इस्लाम में क्या हैं, क्या चीज जायज है। उर्दू के अंदर उसको मुकालमा कहते हैं, या अरबी के अंदर मुकालमा कहते हैं, और इंग्लिश में उसी को डिबेट कहते हैं। जाके डिक्शनरी देख लें। मेरे ओके ऊपर सर, आप ठीक है। मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो जाके नहीं नहीं, देख लो। आपके ऊपर यकीन है सर, ठीक है आप। चले माइक जरा म्यूट करें। तुसा ना सिर डा के रखना है, मैनू लग गया पता तुहाडा। एक बंदा जिसको सूरत का नाम तक नहीं आ रहा, नाम तक जिसको नहीं आ रहा, मुझे बताएं वो कुरान क्या समझेगा? खाक समझेगा। कुरान तो सारा अरबी के अंदर है। सर मुझे नहीं यार ना एक आ रहा। माइक जरा एक मिनट, मुझे आप नाम बोल नहीं ना आ लीजिएगा, रहा, आप बाद में मुफ्ती है बोल ना, लीजिएगा। मेरा ये तरीका ही नहीं है गुफ्तगू का, आपने शायद मुझे कभी सुना ही नहीं है। मैं अपनी बात करने के बाद अगले बंदे को कहता हूं कि भाई हजरत जी अब आप बोल लें। ये मेरा तरीका है गुफ्तगू का। आप अपने वक्त में जितना मर्जी बोलेंगे, मुबश्शिर शाह आगे से बोल गया तो मुझे पकड़ लेना कि यार तू मुफ्ती झूठा आदमी है कि अभी तूने वादा किया था और तू मुकर गए। आपकी गुफ्तगू में मैं नहीं बोलूंगा, ये मेरा एक तरीका है गुफ्तगू का। अपनी गुफ्तगू में मैं किसी को बोलने नहीं देता और किसी की गुफ्तगू में मैं बोलता नहीं। ये तरीका है मेरा मुकालमे का। अच्छा जी, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, एक बंदे को सूरत का नाम तक नहीं आ रहा और वो अब सूरत को क्या समझेगा? हाँ जी, बस मैंने ये बात कर दी है। अब जनाब मोहतरम आप बात कर सकते हैं और आखिर में मुझे इजाजत दीजिएगा बोलने की। ठीक मुफ्ती साहब, मानता हूँ मुझे नाम नहीं आता, कुरान पाक पढ़े ही नहीं है, सीधी जो बात है। इसीलिए आपके पास आया हूँ, कुछ चीज़ें सुनी हुई हैं वो आपसे क्लियर करूँ। अगर आपके आगे से उस जवाब की जगह अगर आपने आगे से अगले बंदे को डिग्रेड करना हो ना, तो फिर आप बराए मेहरबानी कहा करें कि मुझसे क्वेश्चन ना करें, मुझसे ना पूछें। आप देखें, मैं तब भी आऊँगा ना जब मुझे दीन का नहीं इल्म, तो मैं तब पूछूंगा आपसे। जब मुझे इल्म है तो मैं पूछ रहा हूँ भाई ये चीज़ कैसे है, मैंने ये चीज़ सुनी है, मुझे बताएं इसके बारे में ये क्या है। आप अगले बंदे को डिग्रेड कर देते हैं, कहते हैं नहीं जी उसको ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ये नहीं है, वो नहीं है। तो जो चीज़ पूछी है आपको वो पता चल गया, सूरत का नाम नीचे टाइप भी कर दिया है, नहीं पढ़ने आ रहा मुझसे, नहीं पढ़ने हुआ मुझसे, तो आपको आइडिया हो गया, आप मुझे मेरे आंसर दें और बात ख़त्म करें। आप आगे से अपना बता रहे हैं इसको ये नहीं आ रहा, मुझे नहीं सूरत पढ़ने आ रही, तो आपका काम है ना मुझे समझाना, मुफ्ती है ना आप। अगर आपसे नहीं समझाने होता तो आप सिंपल बोल दो भाई मुझे नहीं समझाने होता, मैं आपको डिग्रेड कर सकता हूँ, मैं आपको आंसर नहीं दे सकता, तो तब मैं ठीक है यार, मैं भी कहूँगा ठीक है भाई अल्लाह हाफिज, आप भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूँ, मैं किसी और से पूछ लूंगा। मैंने आते साथ कहा मैं सुन्नी हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर जो चीज़ मुझे सुनने में आई है वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर इजाज़त दें। वो अगर आपसे पूछ ली है, आप आगे से बंदे को कह रहे हैं इसको ये नहीं आ रहा, इसको वो नहीं आ रहा, इसकी ये चीज़ ऐसे है, इसकी वो चीज़ ऐसी है। दाई हार्ड ब्रदर, मेरी बात सुने। आप भाई आए एक हैं, मिनट मुझे आ गया, मुफ्ती साहब ने कहा था बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैंने सिंपल आपसे पूछा है कि मैंने ये बात सुनी है कि कब्रों से मांगना जायज़ नहीं है, आप डायरेक्ट अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाह ताला से मांगो। अल्लाह ताला कहता है मुझसे मांगो, मुझे जब पकारो मैं सुनूंगा। मैंने सिंपल ये चीज़ की है, पूछी है।
पर आप आगे से अगले बंदे को डिग्रेड करने पे लगे हुए हैं। पहले तो भाई ने कह दिया है कादियानी है, मुफ्ती साहब ने भी कादियानी कह दिया है जी, आप कादियानी हो गए हैं जी, ये है वो है। मैंने सिंपल आपसे पूछा है, ये चीज़ मैंने सुननी है, मुझे बताएं क्या सुन्नी शिया वाबी देवबंदी जो भी है मज़हब, जो भी किसी का है, ठीक है, उस पर मैं नहीं जाता। पर जो चीज़ मेरे माइंड में आ रही है कि यार कब्र से मांगना जायज़ नहीं है, डायरेक्ट अल्लाह से क्यों ना मांगूं? आपने मुझे क्या कराया, मैंने नेट से निकाला है, मुझे जो मिला है मैंने आपसे पूछा है, मुझे नहीं समझ आई तो मैंने आपसे पूछा है। आप आगे से कह रहे हैं तुम्हें पढ़ने नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, मुझे पढ़ने नहीं आता, अरबी नहीं मेरी अच्छी। पर आप आंसर देने की बजाय अगले बंदे को कह रहे हैं कि नहीं जी, जिसे यह समझ नहीं आ रहा सूरत वो अरबी क्या समझेगा। आप उर्दू में समझा दें, तर्जुमा तो आपको आता होगा ना। मेरी चीज़ जो है, मेरा वो माइंड तो क्लियर करें आप किस चीज़ के मुफ्ती हैं, मुझे समझ नहीं आई फिर। माइक आपने म्यूट कर दिया है, इजाजत है बोलने की? हेलो जी जी, माइक म्यूट कर दिया है। मैंने सिंपल पूछा है आपसे कि कब्रों से दुआ मांगना या सही है या डायरेक्ट अल्लाह से मांगना सही है? क्यों मेरे इल्म में मैंने अपने दोस्तों से अपने दोस्त को यही सुना है कि कुरान में नहीं लिखा हुआ कि कब्रों से मांगो, उधर लिखा है अल्लाह जब तुम्हें पुकारता है, जब तुम अल्लाह को पुकारते हो अल्लाह तुम्हें सुनता है। मेरा सिंपल ये सवाल है और इसका जवाब पूछा आपसे। मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ, आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दें। बात खत्म। ना मैं डिबेट करना चाह रहा हूँ, ना मैं बहस करना चाह रहा हूँ। अच्छा, गुजारिश ये है कि एक तो वो भी चलो शक दूर हो गया जी, तकरीर तो अब माशाल्लाह आपने भी तकरीर करके बदला तो उतार दिया है ना जी, लंबी चौड़ी तकरीर कर ली ना आपने। अब आप कम से कम मुझे नहीं ये कह सकते कि तुमने भी तकरीर की है, तो कम से कम कायदा कुलिया वो बनाएं कि जिसके ऊपर आप लोग खुद पूरे उतरते हैं। हमेशा कायदा वो बनाते हैं आप लोग कि जो आपके हक में तो बेहतर होता है लेकिन हमारे हक में बेहतर नहीं होता। तो कायदा कुलिया ठीक है, हम कायदे कुलिया के तहत चलेंगे, लेकिन कायदा कुलिया कम से कम वो बनाएं कि जिस पर कम से कम आप कारबंद रहें। आप मोहतरम जनाब, अब मैं आपको क्या कहूँ, मुझे तो नहीं समझ आ रही। मेरा नाम मोहम्मद बिन कासिम है। देखा ना, बोल पड़े ना बीच में। नाम आपको मैंने कहा आप फिर डाई हार्ड कहेंगे तो मैं अपना नाम बता दूं, आपने वो हातिब करना है, मोहम्मद बिन कासिम नाम है। ये तरीका होता है। नहीं, झूठा आदमी कभी भी अपने, क्योंकि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि मुनाफिक की ये अलामत है कि वो वादा करेगा तो खिलाफ करेगा, वादे के ऊपर कारबंद नहीं रहेगा। मुनाफिक की अलामत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। और मुनाफिकीन भी वो ही कि जो अपने आप को कहते हैं मुसलमान है, हम पक्के मुसलमान है, सुन्नी है, बरेलवी है, हनफी है, हम बड़े पक्के सच्चे सुच्चे मुसलमान है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, पहले ही फरमाया कि मुनाफिक होते हैं ये लोग, और इनकी अलामत ये होती है कि जो वादा करेंगे उसका खिलाफ करेंगे। वादा करेंगे कि हम बीच में नहीं बोलेंगे, लेकिन बीच में बोल पड़ेंगे, अपने वादे को करके तोड़ देंगे। ये मुनाफिक की अलामत है। हमें तो देखो भाई अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऊपर पक्का यकीन है। अब आप बार बार कह रहे हैं जी मैंने सुनी है, मैंने सुनी है, मैंने सुनी है, मैंने सुनी है। अब अल्लाह के नबी ने ना आपको कज़ाब का है मेरे भाई, सुनी सुनाई बात को पेश करने वाले को अल्लाह के नबी ने कज़ाब का है। हवाला मैं दे देता हूं और जाके चेक कर लें। मुस्लिम शरीफ हदीस की किताब है, उसके मुकदमे के अंदर हदीस नंबर 7 है, और नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कफा बिल मरई काज़िबन, किसी शख्स के कज़ाब होने के लिए इतनी काफ़ी है। वो क्या है, उसकी अलामत क्या है उस कज़ाब की,
کہ ان یحدث بکل ما سامیا، کہ وہ ہر اس چیز کو آگے جا کے پیش کرے کہ جو اس نے سنی ہوتی ہے. یعنی سنی سنائی بات کو اٹھا کے آگے پیش کر دینا، یہ کذاب کی علامت ہے، جھوٹے انسان کی علامت ہے. ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ کی ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر لیا گیا ہے، بار بار آپ کہہ رہے میں نے سنی ہے، میں جاہل آدمی ہوں، مجھے آتا کچھ نہیں، مجھے قرآن نہیں آتا، مجھے یہ نہیں آتا، میں نے سنی ہے سنی ہے سنی ہے سنی ہے سنی ہے. تو سنی سنائی کو آگے پیش کر رہے ہیں. اور جب آپ نے کہا تھا قرآن کے اندر یہ ہے کہ قبروں سے مانگنا حرام ہے، تو یہ ہے وہ ہے، تو میں نے آپ سے دلیل قرآن کی مانگی تھی، تو آپ نے مجھ سے 3 منٹ لیے تھے، اور ان 3 منٹوں کے بعد آپ جو آیت لے کے آئے تھے اس آیت کا نام تک آپ کو نہیں آ رہا تھا، نام تک نہیں آ رہا. آیت تو میں نے ابھی سنی نہیں آپ سے، تو وہ آیت ہے کون سی؟ وہ تو بعد میں وہاں تک نوبت ہی نہیں آئی، وہاں تک نوبت آئی ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم جیرا کر سکتے. وہ آیت آپ سے سنتے کہ وہ کون سی آیت ہے، اس کو دیکھتے ہم. میں اللہ کے حکم سے عالم دین ہوں بھائی، مجھے آیات کے شان نزول تک کا پتہ ہے، مجھے ترجمے سے واقفیت ہے، میں عربی کا ماہر ہوں اللہ پاک کے حکم سے، میں ٹیچر ہوں. ابھی میں کورس کروا رہا ہوں تو قابل دھیان و مزاح مع درس نظامی آن لائن کورس ہے ہمارا، یہ فری کورس ہے. تقریباً 1500 کے قریب میرے پاس طلباء اور طالبات ہو گئے ہیں، اسٹوڈنٹس ہو گئے ہیں. میری ابھی عربی کی گرامر کی کلاس جاری ہے، میں ٹیچر ہوں عربی کا. ابھی وہاں تک تو نوبت ہی نہیں آئی میاں، وہاں تک تو نوبت ہی نہیں آئی کہ میں آیت کے اوپر جرا کر سکوں. ابھی تو بات یہاں اصولی طور پہ بات چل رہی ہے کہ ایک بندہ جاہل مطلق ہے، اس کو آتی جاتی کھے نہیں ہے. تو میرے بھائی بڑی معذرت کے ساتھ، مجھے پتہ ہے آپ کو میری باتیں اتنی کڑوی لگ رہی ہوں گی کہ ابھی آپ کا اگر مائک اوپن کیا جائے نا تو آپ کوئی روڑا میرے سر میں مار دیں، مجھے پتہ ہے. لیکن قرآن پاک نے آپ لوگوں کے لیے فیصلہ کر دیا ہوا ہے، قرآن نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، سورہ الفرقان ہے، آیت 63 ہے کہ جب یہ جاہل تم سے خطاب کریں تو ان کو سلام کہا کرو. بس سلام کا مطلب یہ جاؤ بھائی اپنے رائے جاؤ. میں نے اپنی بات کمپلیٹ کر لی، اب آپ بول سکتے ہیں میرے بھائی. مفتی صاحب، مبشر صاحب، سوری مفتی تو میں آپ کو کہوں گا نہیں، مبشر صاحب، کیونکہ میرا جو سوال ہے مجھے اس کا جواب نہیں آپ نے دیا. آپ باتیں آگے پیچھے گھما کے، میں سمپل لفظوں میں کہا ہے مجھے نہیں معلوم. میں نے سمپل پوچھا ہے قبر سے مانگنا جائز ہے یا ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. سمپل ایک چیز پوچھی ہے، اس چیز کا آپ نے جواب نہیں دیا. آپ نے آگے پیچھے گھوم کے اینڈ میں کہہ دیا ہاں جی آپ کے لیے یہ کہہ دیا. ٹھیک ہے، وہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. وہ میں جس چیز کی مجھے کمی ہے، جس چیز میں مجھے ڈاؤٹ ہے، میں نے دیکھا مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی لکھا ہوا ہے، میرا ڈاؤٹ یہاں پہ کلیئر ہوگا. پر یہاں پہ تو وہ جواب ہے ہی نہیں. جو چیز پوچھ رہا ہوں اس چیز کا تو آپ جواب دے رہے نہیں ہے. ہیلو مرزئی صاحب، ایک منٹ ٹھہر جو، بہت ہو گئی ہے گلاں، ٹھہر جو ذرا گل سنو. کی موقف ہے تہاڈا؟ میرا معافی یہی ہے کہ قبر سے دعا، کی میرا یہی ہے قبر تو دعا منگنا ٹھیک ہے یا میں ڈائریکٹ کی اللہ کیا کو بولا؟ منگنا میں کی کیا بولا؟ ٹھیک ہے؟ میں کہ تہاڈا موقف کی ہے؟ کیا مطلب؟ تہاڈا موقف کی ہے؟ السلام علیکم، 1 منٹ میں بات کر سکتا ہوں؟ بولیں ایک منٹ آپ ابراہیم بھائی. خاموش رہیں ذرا، جی ابراہیم بھائی 1 منٹ خاموش رہیں، وہ ذرا میں گفتگو کر لوں. 1 منٹ ٹھہر جائے، مائک میوٹ کر لیں ذرا ابراہیم صاحب. میں نے سمپل مفتی صاحب سے پوچھا ہے کہ یار کہتے ہیں قبر سے دعا مانگ لو یا دیکھیں ڈائی ہارڈ صاحب، 1 منٹ، میں نے کہا آپ کا موقف کیا ہے؟ میرا موقف اپنا کوسٹن کا آنسر لینا ہے. مثلاً کوسٹن کیا ہوتا ہے؟ کوسٹن سوال، کوسٹن ہوتا ہے سوال؟ اور کیا ہوتا ہے؟ اچھا، تو کوسٹن کیا ہے آپ کا؟ میرا یہی ہے قبر سے دعا مانگنا ٹھیک ہے یا ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگو وہ ٹھیک ہے.
दुआ मांगना यार अल्लाह से तैमूर मांगना तैमूर जी हजूर तैमूर वाला शेर जी हजूर तैमूर वाला शेर जी जी बंदा ना बिल्कुल कैफियत उस कैफियत च नहीं है लग रहे गल है भी क्या गल ना मुकनी लड़ाई ते जे है तुम मैं दस दियां नहीं मैनू पता है लड़ाई किस गल गल दी होनी गल है दी सर इंतहा जेड़ी है ना लड़ाई ते मुकनी जे वेखो कुरान ने अल्लाह ने फैसला जदों कर दिता है कि जदों ਇਹ जाहिल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ चलो ਮੈਂ ठीक ਕਹਿੰਦਾ है ਵਾ फिर ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ अस्सलाम ਸਲਾਮ वालेकुम ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ अस्सलाम वालेकुम ਹਾਂਜੀ ਵਾਲੇकुम सलाम चल ठीक चल है गया नहीं ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਘਰ ਹੈ ਹੋਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਾਰਗ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਲਝੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਨੀਆਂ ਹੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਦਾ ਨਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਤੈਮੂਰ ਨਵੇਂ ਕਾਲਰ ਆ ਰਹੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਲਵੋ जी हजूर वाला शेर इब्राहिम साहब आए थे इब्राहिम अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम खलील हूँ मैं बांग्लादेश से हूँ। उन भाई का जो सवाल था वो मैं बाद में बताता हूँ, एक बात क्लियर कर दूँ। शायद मेरा बात आप लोगों को पूरा समझ में ना भी आ सकता है क्योंकि मैं बांग्लादेश से हूँ, आप पाकिस्तान से, ज़ुबान का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो हम लोग जो नॉर्मल बंदा है आप ना थोड़ा सा ऊंचा बोले, जबान आपकी समझ आ रही है, मैं थोड़ा सा ऊंचा बोले, आवाज बहुत स्लो है। हाँ ओके ठीक है। हम जो आम बंदे नहीं होते हैं नहीं ना, नहीं ये जी करके तो आप फिर वैसे ही थोड़ा सा ऊंचा बोले। एक मिनट में मेरा ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। जी करके ये कौन सा तरीका है जी? वैसे ही आप हम लोग जो आम बंदे होते हैं, हम लोग जो चीज़ सुनते हैं इसका तहकीक करना चाहते हैं कि ये सही है या गलत है। तो ये भाई का जो सवाल था इसलिए मैंने आया, और दूसरा बात मेरा भी ये सेम सवाल है कि हम लोग कुछ भी सुनते हैं, जो सुनते हैं ये मौलाना से ही सुनते हैं, कोई ना कोई मुफ्ती, कोई ना कोई मौलाना, ये लोग ही बताता है। तो हम लोगों को कन्फ्यूज होता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इन भाई का जो सवाल था, कब्रों से मांगना जायज़ है या बिदात है या जायज़ नहीं है, या अल्लाह से डायरेक्ट मांगना है, इस भाई का ये सवाल था। मुझे शायद यही लगता है, और मेरा भी सेम यही सवाल है, कब्र से मांगना जायज़ है या नहीं जायज़। बस ये बता दें मुझे। जी माइक म्यूट करें, अर्ज कर कि कब्रों से मांगना शिर्क है, हराम है, गुनाह है। जवाब मिल गया? हेलो, हराम है? जी हराम है, गुनाह है, शिर्क है। ओके थैंक यू। इस भाई का भी सेम ही सवाल था। चलो ठीक है, जवाब मिल गया ना? जी मिल गया। चलो ठीक है। अच्छा ये तरीका होता है असल में कि जो साइल होता है ना, अगर तू आया है सवाल करने के लिए, उसको जब जवाब दे दिया जाए चुप हो जाता है, वो आगे से जिरा नहीं करता। फिर जो जिरा करता है इसका मतलब वो डिबेट करने के लिए आया है, वो मुनाजरा करने के लिए आया है, वो मुकालमा करने के लिए आया है। तो फिर जो डिबेट करने के लिए आता है ना, उसके साथ रवैया हमारा अलग होता है, एक साइल के साथ रवैया हमारा अलग होता है। बिल्कुल साहिल तो इतनी जिरा नहीं करता, बस उसको सवाल है ना, उसको जवाब मिल गया, बस ठीक है, चुप हो गया। ये तरीकाकार मैं समझता हूँ एक मुनासिब सा तरीकाकार। जी तैमूर मियाँ आगे बढ़े। चौधरी मनीर साहब आए हैं। चौधरी मनीर साहब से पहले बैठे हुए हैं सिद्धू साहब। अच्छा ए वे तरीकाकार है वे कि जेड़ा फारग हो जाए फिर कह दिया करो कि भाई थल्ले टुर जा भाई, ताकि जगह खाली कर। हुजूर वाला शाह असल ते मॉडरेटर भी हैगे, ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਆਸੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी सिद्धू साहब, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ? ਠੀਕ ਹੈ अल्हम्दुलिल्लाह जी। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਈਏ? नहीं रहन दो, मैं तो ना सानू कर ਇੱਕ लैन दो। ਮਿੰਟ, ਸਿੱਧੂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ? ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ? नहीं जी मैं मुसलमान। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੇ ਬੜਾ ਗੁਸਤਾਖ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਬਹਰਾਲ ਤੈਮੂਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। जी सिद्धू साहब। हाँ जी तैमूर भाई, मैं ये सवाल करना चाहना, अगर कोई भी जवाब दे देवे तो।
ਬਈ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਮਾਮ ਅਕਸਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਸ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਜ਼ਕਾਤ ਦਿਓ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਹਜ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਮਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਈ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੈਦ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਹਤਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਉਲਮਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਬੁਤਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਮੌਜੂ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਸਾਡੇ ਜਾਓ, ਉਲਮਾਵਾਂ ਸੁਣੋ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਮਿੰਟ, ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਕਰੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਬਰ ਕਰੋ। ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਉਲਮਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਲਕਿ ਉਲਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। अच्छा तैमूर, मैं थोड़ा जा अर्ज करांगा। तो गुजारिश ये है कि उलमाए हजूर चले गए कराम उलमाए कराम अगर कोई काम करें तो ये अवाम कहती है ये उलमाए कराम ये काम क्यों कर रहे हैं, अगर ना करें तो फिर भी कहती है ये अवाम कि ये क्यों नहीं कर रहे। मतलब ये कि ये अवाम जो है ये चाहती क्या है, ये नहीं आज तक ये फलसफा मुझे तो नहीं कम अज कम समझ आया कि ये अवाम हमारी चाहती क्या है असल। हाँ जी, वो TLP है पाकिस्तान के अंदर, हाँ जी, जब वो किसी चीज़ के ऊपर खामोश रहें, कोई एहतजाज ना करें तो अवाम में से कहते हैं देखो कहाँ गई TLP, एहतजाज क्यों नहीं कर रही। और जब वो एहतजाज करते हैं, वो जलसा जुलूस कोई निकालते हैं, लो जी मौलवी दहशतगर्द, जी मौलवी दहशतगर्द, ये देखो मौलवी 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 मौलवी। एक तो मुझे इस अवाम की नहीं समझ आती, ये है चाहते क्या है भाई, ओ मियाँ चाहते क्या हो, ओ क्या कहना चाहते हो। ये वो वाली अवाम है, अल्लाह ही माफ करे इनको ना, ये वो दरांती है कि जिसको दोनों तरफ छेद पड़े हुए हैं, ये दोनों तरफ से काटते हैं। तो बस तगफिरुल्लाह यार, कोई खुदा दा खौफ कर लिया करो यार, कोई रब दा खौफ नहीं तुहाडे है। वो उलमाए कराम के जो जिनके कुरान हदीस उनके सीनों में, पूरी जिंदगी उन्होंने कुरान और सुन्नत में गुजारी, मस्जिद मेहराबों मिंबर में गुजारी। हाँ जी, इमाम का मतलब होता है, इमाम का फलसफा तुम समझ जाओ तो तुम्हें लग पता जाए इमाम का मकाम क्या है? इमाम वो इमाम है कि जो तुम्हें एक काशन देता है, एक काशन के झुक जाओ, तो पीछे वजीर आजम क्यों ना खड़ा हो और बादशाह वक़्त क्यों ना खड़ा हो, वो उस एक इमाम के एक काशन के ऊपर वो जमीन के ऊपर सर लगा देता है, झुक जाता है। और उस वक़्त तक वो जमीन से टिका रहता है जब तक इमाम नहीं चाहता। फिर इमाम काशन देता है उठ जाओ अब, तो वो बादशाह वक़्त जो ना सर उठाता है। और इमाम तुम क्या जानो इमाम क्या चीज है, इमाम है। ओए ये इमाम ना होते, जब ये इमाम जब तुम पैदा होते हो तो इमाम को बुलाते हो कि दबो जी साडे कन विच अजान ते असी मुसलमान होइए, और जब मरते हो तो इसको बुलाते हो और पढ़ाओ साडा जनाजा है ते सानू मुसलमाना दे कब्रिस्तान च दफनाओ। ओ मौलवी सदो, मौलवी सदो। कभी देखा दुनिया का, कभी कोई ऐसा देखा कि किसी का जनाजा जो है वो जनाब किसी दाढ़ी मुंडे ने पढ़ाया हो?
है? कोई मिसाल दे दो। इमाम के फजाइलो बरकत कुरान और हदीस भरी पड़ी है। वो रिवायत में आता है कि क़यामत का दिन होगा तो आलीशान सवारियों के ऊपर दो मियाँ बीवी आ रहे होंगे, साइडों पर फरिश्ते होंगे, हूरो गिलमा होंगे, और उनका इस्तकबाल इतना ज़बरदस्त तरीके से किया जाएगा कि सारे लोग ऐसे उठा के नज़र उठा के देख रहे होंगे, और लोग ना आपस में बातें करेंगे, यार ये किसी नबी के वालिदैन है, ये किसी नबी के वालिदैन है। तो हाथफ से आवाज आएगी, और ये किसी नबी के वालिदैन नहीं है, ये उम्मत मुहम्मदिया के एक आलमे दीन के वालिदैन है। ओए उस आलमे दीन का अपना मकाम क्या होगा जिसके वालिदैन का ये एहतराम है, मकाम है। ओए रिवायतों में आता है कि एक तालिबे इल्म अभी वो आलिम बना भी नहीं है, वो अभी सिर्फ एक कब्रिस्तान से गुजर जाए, और उस कब्रिस्तान के अंदर कोई जानी था, कोई शराबी था, कोई बड़ा गुनहगार था, कोई कातिल था, और उसके ऊपर अजाब हो रहा था। अल्लाह पाक उस तालिबे इल्म के गुजरने की बरकत से 40 दिन तक अजाब उठा लेता है। और अभी तो वो तालिबे इल्म है, अभी वो आलिम तो बना भी नहीं, तो उसका ये मकाम है। तो जब आलिम बन गया तो क्या मकाम होगा, और तुझे तो पता भी नहीं है, खबर भी नहीं है। रिवायतों में आता है आलिम दीन का पूरी रात सोना और एक आबिद का पूरी रात इबादत करना आपस में बराबर नहीं हो सकता। आलिम का सोना फिर भी अफजल है। अल्लाह हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रहमतुल्लाही ताला अलैह फतावा रिजविया के अंदर एक फतवे का जवाब देते हुए इरशाद फरमाते हैं कि जमात खड़ी हो गई थी और आलमे दिन सोया हुआ था। एक जाहिल आया बाहर से और आके उसने उस आलमे दिन को उठाया कि हजरत जी उठो, जमात खड़ी हो गई जे। अल्लाह ताला फरमाते हैं हराम है उसके लिए उस जाहिल को, उस आलिम को उठाना हराम है उसके लिए। अब अकल तो यही कहती है यार जमात वाजिब थी और ये हराम कैसे हो, अकल तो यही कहती। लेकिन ये उस आलिम दीन का इज्जत और मकाम है। अभी नमाज का वक्त है, वो बाद में उठ के पढ़ लेगा, आराम करने दो। ये इज्जत और मकाम एक आलमे दीन को अल्लाह और रसूल ने दिए हैं। हमारे वो पुराने वक्तों की बात है, अभी तो मादियत का दौर आ गया है, इल्हादियत का दौर आ गया है। वो पुराने वक्तों की बात है, यकीन मानिए मैंने खुद ये वक्त देखा है, मैंने खुद देखा है कि मस्जिद के मौलाना साहब कभी गली में आ जाते थे तो खवातीन जनाब हुए दरवाजे बंद, कोई बच्चे तक कमरों में घुस जाते थे उनके अदब और एहतराम में कि हजरत मौलाना साहब आ रहे। कोई अगर जाहिल शख्स आ रहा है तो नजर झुका लेता था, आगे बढ़ के हाथ चूमता था कि हजरत जी, और दावत देते थे हजरत जी आए हमारे घर में, हजरत जी आए ना, कदम रंजा फरमाया हजरत जी आए हमारे घर में। ये खुद देखा है मैंने, अल्लाह की कसम मैंने देखा है। ये एक वक्त वो था कि आलमे दीन के आगे कोई आवाज बुलंद नहीं करता था, चुप हो जाता, सुनाटा तारी हो जाता था, कोई बोलता नहीं था कि आलमे दीन यहां मौजूद हैं। लेकिन ओए होए ये मादियत के दौर ने, इल्हादियत के दौर ने इस हमारी अवाम को कहां पे फेंका है। आज बात बात की बोलियां बना रहे हैं। जिस बेचारे को स्टिंजे का तरीका नहीं आता
اس کو پچھواڑا صاف نہیں کرنا آتا شریعت کے مطابق، وہ اٹھ کے علماء کے اوپر انگلیاں اٹھاتا ہے، یہ دیکھو عالم یہ کر رہے، یہ مولوی یہ کر رہے، یہ دیکھو مولوی یہ۔ دیکھ لیں الامان والا جی تیمور میاں۔ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਹਿਦੀਨ ਹੋਣ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਬਰਲਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੈਕੂਲਰਸ ਹੋਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਮਾ ਤੇ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਉਲਮਾ ਤੇ ਅਟੈਕ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਕੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਉਲਮਾ ਤੇ ਆਂधी ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ थोड़ी जी रोशनी पाओ। असल में उलमा के ऊपर अटैक करने के कुछ पीछे मामलात हैं। पहला मामला तो ये है कि वो शुरफा लोग होते हैं, उन्होंने आगे कोई इन बदतमीज़ों के आगे कोई बात करनी नहीं होती, और वो इनको मुंह भी नहीं लगाते इन जाहिलों को। तो इस वजह से एक जाहिल का उठ के बात करना ना एक आलिम दीन को बड़ा आसान होता है, क्योंकि वो तो बदतमीज़ आदमी है, वो जाहिल आदमी है, तो उसकी तो ना ही तो इज्जत है, तो ना ही कोई मकाम है। लेकिन आलिम दीन की तो अपनी इज्जत है ना, उसकी इज्जत जाती है भाई। वो फिर आलिम दीन आगे से खामोशी इख्तियार करते हैं। एक तो वजह ये कोई समझ आती है। दूसरी वजह ये है कि दूसरी वजह एक ज़हन में थी मेरे, एकदम ज़हन से उतर गई है। तो बहरहाल ये है कि ये असल में तैमूर मियाँ मादियत का दौर है, जहालत का दौर है, और बस अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, और बस क्या कर सकते हैं। ये नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेश गोई है हजूर ने जो फरमाई थी, वो पूरी होकर ही रहनी है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्बे क़यामत में फितना इतना फैल जाएगा कि जैसे आसमान से बारिश के कतरे बरसते हैं पे दर पे, यानी एक फितना भी ख़त्म नहीं होगा, दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरा ख़त्म नहीं होगा, तीसरा भी, फिर उन फितनों की बौछार हो जाएगी। जब बारिश के कतरे, आपको पता है, टप 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 टप, वो एक सेकंड के अंदर लाखों कतरे बरसते हैं, एक सेकंड में लाखों कतरे ज़मीन को छू लेते हैं। तो बारिश के कतरों से मिसाल दी है हजूर अलैहिस्सलाम। वो दौर आ गया है ना, फितना हुए। आप और मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, क्या हम नहीं देखते इन फितनों को, और हजूर अलैहिस्सलाम की उस पेशगोई का मुजाहरा नहीं करते, रोजाना नहीं करते? फितने पे फितने आ रहे हैं, हुए। और वो हजूर अलैहिस्सलाम की वो हदीस जबरील के अंदर क़यामत की अलामत जो बताई थी नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल को, उसमें यही था ना कि जिसका मफहूम है, मफहूम बता रहा हूं कि एक जो जाहिल होगा वो एक आलिम के सर पे चढ़ जाएगा, एक लोंडी जो होगी वो आका पर हाकिम होगी, और जूते के तस्मे तक बोलेंगे। मुराद यही है, यही है वो मुरादें। ये पहले बता दिया गया ऐसे होना है, ये क़यामत की अलामतों में से अलामतें हैं। आज देख लें जितने जो हाल हैं, और वो उलमा के ऊपर वो तानो तशनी करेंगे, हुए अल्लामान वाला फीस, तौबा 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 तौबा। हाँ, वो देख ले, आपके सामने अभी नमूना नहीं मिल गया। वो बंदा कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी, मैं हालांकि आलम दीन हूँ यार, मैं चुप करके सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। वो मैंने कहा ले वही मुबशर शाह, तू पूरी जिंदगी ला के पढ़दा रहा ते वो चीज़ां तेनों पूरी जिंदगी नहीं लभियां ते जड़ियां अज इत्थों लभ जानियां।
ਤੇ ਖੋਦਿਆ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹਾ, उसको बेचारे को कुरान की आयत तक का, कुरान की सूरत तक का नाम नहीं आ रहा लो। मैं कहा अज पता नहीं किहड़ी कुरान दी आयत लभनी है सानू, पूरी जिंदगी तो असीं सुनी को नहीं सी, चलो अज सुन लेने इन्हां कोल, वो नाम तक नहीं आ रहा और वो आलम दीन के साथ उलझ रहा है। बताए मुझे क्या बंदा करे। तो फिर हम वो नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई ये समझ के ना चुप हो जाते हैं कि हजूर आपने फरमाया है, हक फरमाया, हक फरमाया, जो आपने फरमाया हक फरमाया वैसा हो रहा है। हम खुद देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं हजूर, हम खुद देख रहे हैं, आपने हक फरमाया। ये बात है तैमूर मियां जी। बात करें आगे, दीगर दोस्तों को मौका दें भाई, कोई बात किसी ने करनी है। हजूर वाला शान एक सवाल मैं होर करना है। मैं जितने भी इतने गुफ्तगू की है ना, अच्छा जितने भी ये इंजीनियर के फॉलोअर्स के साथ गुफ्तगू की है, जितने भी इधर आए हैं साबका में से जो अभी होके गया है, अच्छा इन सब ने किसी और मसलक का नाम नहीं लिया, किसी और मसलक का, सिर्फ और सिर्फ मैं सुन्नी हूँ जी। ये भी समझ नहीं आती कि ये अपने आप को सुन्नी भी कह रहे हैं और हमें खुतमे नबूवत का मुनकर भी कह रहे हैं। ये भी समझ नहीं आती, ये भी अचंभे की बात है। ये क्यों खुद को क्लेम करते हैं सुन्नी, हालांकि होता वो मुल्हिद है। हाँ तैमूर मियाँ, इसके ऊपर सुन्नियत के ऊपर मैं पहले भी कई दफ़ा गुफ्तगू कर चुका हूँ। असल में पूरी दुनिया के अंदर सुन्नी अक्सरियत से है ना, पूरी दुनिया के मुसलमानों के दो बड़े ग्रोह और मकातबे फ़िक्र शुरू से चलते आ रहे हैं। एक सुन्नी थे, दूसरे राफसी थे। इब्तदा से तो ये दो ही चलते आ रहे हैं ना, सुन्नी और राफसी। तो राफसी भी बड़ी तादाद में है, बहुत बड़ी तादाद में है, लेकिन सुन्नी ज़्यादा है, सुन्नियों की अक्सरियत है। तो अब हुआ ये कि इन लोगों ने वो सुन्नियत का ही लिबादा ओढ़ के सामने आना शुरू किया। हर एक अपने आप को कहने लगा मैं सुन्नी हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं सुन्नी हूँ। अब मिर्जा जूनियर जेल में भी देख ले, वो भी कहते मैं सुन्नी हूँ। मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी वो भी अपने आप को कहता था मैं सुन्नी हूँ। उसकी किताबें मेरे पास मौजूद हैं, किसी को दलील चाहिए होगी तो पूछ लीजिएगा, मैं दलील दे दूँ। वो भी कहता था मैं सुन्नी हूँ, हालांकि वो वाबी था। मिर्जा कादियानी पहले वाबी था, लेकिन उसने साथ कहा कि मैं सुन्नी हूँ, था वाबी लेकिन कहता मैं सुन्नी हूँ। मिर्जा जूनियर जेल में भी है वाबी, लेकिन कहता है मैं सुन्नी हूँ। बताइए बंदा करे तो करे क्या? अब किसी की जुबान तो नहीं बंदा बंद कर सकता ना भाई, वो आजाद है, जो मर्जी कहे। तो ये मामला है कि बस इन लोगों ने लिबादे ओढ़ लिए हैं सुन्नियत के जी। अच्छा तैमूर, काफी गुफ्तगू हो गई यार, मुझे जाना है। तो अच्छा उस्ताद मोहतरम, एक गल तुसां नाल करनी इजाजत है? जी जी जी। जिना कायदियानिया की तुसा जनाब वो कलमा पढ़ा के मुसलमान कीता है, वो 6 बंदे ने, मेरा ख्याल है 6 बंदे ने, है जी? जी 6 जी। अच्छा उन्होंने जो एक बंदा तुसा उम्रे ते भेजा आज जो मेरे घर ही है इत्थे मदीना शरीफ अच्छा जो अब्दुल रज़ाक साहब पहुंच गए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ठीक जी जी अब्दुल रज़ाक साहब इत्थे आए ने, एक मेहमान और भी नाल है उन्होंने मदीना शरीफ, मदीना शरीफ जो वो मेरे इत्थे घर आए ने। माशाअल्लाह आज माशाअल्लाह। आज रात वो इत्थे ही रहे, तो काफी देर तो ना इंतजार करने रहनो, तकरीबन 1 बजे तक सऊदी टाइम, यानी 1 साढ़े 12 1 बजे तक। तो फिर उस तो बाद वो आनंद जी के ਅਸੀਂ आराम करन लगे हैं जी, असा सुबह फिर नमाज हाँ अच्छा, ते हम आधे ये घंटे सफीर बाद भाई, उन्हें उठा सा। सफीर भाई ये एक तो उर्दू में जी बात जी किया करें। अच्छा दूसरी बात ये है कि क्योंकि वो रिकॉर्डिंग हो रही होती है ना, तो वो फिर सोशल मीडिया यूट्यूब पे जब जाती है वो फिर कईयों को वो पंजाबी या पठवारी समझ नहीं आती, वो फिर कहते हैं यार जी ये पता मैं नहीं कौन सी। अच्छा सुने जरा, मैं अर्ज कर, जी जी एक तो इनकी खिदमत खूब करनी है आपने, ठीक है, और जी जी इनको ज़ियारात के ऊपर पर्सनली आप लेके जाएं और मेरे आका हजूर के वो मकामात दिखाएं इनको, ताकि इस्लाम की रोशनाई मिले। और इन्होंने ना इनको आशिक बना के वहां से निकालना है आपने, आशिक। बड़े आज तो रोए हैं जी। हाँ आज जब हाँ मैंने हाँ उनको तमाम
हदीसें सुनाई हैं जनाब, वो उनको तमाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकयात बताए हैं, जितने मौके हैं, जितनी जियारतों के बारे में, तो वो जनाब रोने लग गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये इसी वजह से मैंने आपको नंबर दिया था कि इनसे राब्ता करना है और इनसे मुलाकात आज करनी है। जी उस्ताद मोहतरम, आज उन्होंने एक और भी खुशखबरी सुनाई है। जी जी। उन्होंने कहा जी कि जहाँ पे मैंने अपने बेटे का रिश्ता किया है, वो फैमिली भी इंशाल्लाह मुफ्ती साहब से मिलाऊंगा, तो इंशाल्लाह उनको भी हम कोशिश करेंगे कि वो भी इस्लाम में दाखिल हो जाए। वाह वाह वाह। यही असल में देखें, इनको उम्रा पर भेजना और इन इन असल में मकसद यही था कि इनकी फैमिली के दीगर अरकान भी जो है ना वो भी दायरा इस्लाम में आ जाएं। तो इंशाल्लाह देखा ना, खुशखबरी मिल गई ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो होगा होगा, ऐसे होगा। हमने इंशाल्लाह इनकी पूरी फैमिली को, इनके तमाम अरकान को इस्लाम में लाना है इंशाल्लाह ज़रूर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बड़े प्यार वाले बंदे हैं। कहते हैं जी कि मेरे वालिदैन जो हैं वो मुझे बड़ा दुख है जी कि वो इसी तरह चले गए दुनिया से। मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था, मगर मुझे जब मुफ्ती साहब का सहारा मिला है, तो कहते हैं जी कि उन्होंने मुझे मेरे दिल को जो है वो मजबूत किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह। कायदियानियत जो है वो, मैं उससे ये थोड़ा सा, हमें मसला ये होता है कि ये बाद में बंदे के ऊपर तशद्दुद करते हैं, मुश्किलात बनाते हैं, मगर मुफ्ती साहब ने जो हमें हौसला दिया है, इंशाल्लाह हमें जनाब वो बड़ी उम्मीद लग गई है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा और हम इस जो कल्लट से निकले हैं, तो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बड़ा करम और फजल किया है। और अभी हम तकरीबन कह रहे हैं जी कि जितने हमारे अजीज़ कारब हैं, वो कहते हैं जी मेरी बीवी का जो वो भाई हैं, जो बहनें हैं, उनको भी हम आहिस्ता आहिस्ता जनाब वो मुफ्ती साहब के साथ मुलाकात करवाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम पूरा कबीला जो है उसको इस्लाम में दाखिल करें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यार आए हाय हाय, बड़ी सोहनी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਾ, ਦਿਲ ਝੂਮ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਆਏ ਹਾਏ ਆਏ ਹਾਏ, वाह 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 वाह। यार देखें शरीफ भाई, कोई नहीं है यार, ये माइक ओपन है इनका, कोई कमाइयाँ है ही नहीं। हम यकीन जाने चाहे लोग हैं, हम पापी हैं, गुनहगार हैं, ना ही कोई इल्म ना ही कोई अमल, कुछ भी नहीं है कि मुबशर शाह जिसके ऊपर बड़ा फख्र करे कि मुबशर शाह तू बड़ा तो हाजी नमाजी और बड़ा तो आलिम फाजिल, तो बड़ा कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जिसके ऊपर मुबशर शाह फख्र करे। मैं एक गुलाम आदमी हूँ और एक नाकिस, बिल्कुल आजिज। लेकिन ये चीज़ें जो ऐसी हैं कि जो मुबशर शाह को सहारा दे देती हैं और खड़ा कर देती हैं। उस्ताद मोहतरम जो उस्ताद मोहतरम जो मैंने कुछ जानना आपसे, माज़रत असद भाई, खिदमत जो कुछ हमसे, मैंने मुफ्ती साहब से कुछ अर्ज करनी है, अगर आपकी इजाज़त हो तो। मैंने कुछ इल्म लेना उनसे। मुफ्ती साहब, अल्हम्दुलिल्लाह शाह जी, मैं आपकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, दिल से आपकी इज़्ज़त करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे थोड़ा सा ये जानना है कि मैं जब दुबई में आया हूँ ना, मुझे 3 साल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ये शरफ़ अता किया कि मैंने 2 लोगों को इस्लाम कबूल करवा दिया। एक अफ्रीका का था और एक फिलिपाइन का, 2 को करवा दिया। मुझे ये बताइएगा कि इसका इस्लाम में क्या रुतबा है, मैं जानना चाहता हूँ, और इससे हो सकता है मेरे अंदर का जज्बा और ज़्यादा बढ़े। काइंडली मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। आप अपनी आवाज़ ज़रा तेज़ करें ताकि समझ आए सब दोस्तों को। अच्छा चले, मैं थोड़ा बहुत समझाऊं जो आवाज़ आई है जी, बात समझ आ गई है जी। मैं अर्ज करता हूँ, मैंने जाना था असल में, तो वो फिर बस यही बता दें, ये मेरे लिए काबिल एहतराम होगा, प्लीज़ मेहरबानी। नंबर 1 बात तो ये है कि किसी को मुसलमान, गैर मुस्लिम को मुस्लिम करना बहुत रुतबे की बात है, बहुत रुतबे की बात है। वो मैं बयान करूं तो तब नहीं मिलने आपको वो रुतबे अल्लाह ने दे दिए। वो जिनके लिए आपने ये किया ना, उनको पता है, सब पता है उनको। वो हम और आप आपस में डिस्कस ना भी करें, उनको पता है। जिनके लिए किया, मालकों के लिए किया, उनको खबर है, सब खबर है।
رہی بات یہ کہ ہمیں کوئی اس کا اجر ملے یا نہ ملے دنیا میں یا آخرت میں، اس پہ ہماری غرض نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا محترم، یہ یاد رکھیے گا، اس پہ نظر نہیں۔ عثمان صاحب، یار ایک منٹ عثمان بھائی ہیں جی۔ یار بات سن لے ذرا، عاجز کے ہاتھ پر سینکڑوں لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، شاید 1000 سے بھی زیادہ یا 2000 سے بھی زیادہ، اب آج تک میں نے بھی نہیں کاؤنٹنگ کی۔ میں ابھی دورے طالب علمی میں تھا، دورے طالب علمی میں، تو اس ٹائم 6 ہندوؤں کو عاجز کے ہاتھ کے اوپر انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، 6 ہندو تھر ایریے میں کراچی پڑھتا تھا، تو وہ دعوت اسلامی کا قافلہ گیا تھا تھر، تو وہاں پر پھر وہ اچھا چلو بہرحال، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج تک اس کے اوپر ہماری کوئی نظر ہی نہیں ہوئی کہ یا اس کا اجر ہمیں کوئی دنیا میں ملے، کوئی واہ واہ ہو، یا مطلب کوئی آخرت میں اس کا کوئی اجر مل جائے، اس کا ہے ہی نہیں۔ بس ایک چیز ہے کہ مال کو تسی راضی رہنا، جے میرا سونا دکھ وچ راضی تے سکھ نو میں چلے ڈاواں، یہ مائک کسی کا اوپن ہے، تو بس یہ ہے مالکوں کی رضا پیش نظر ہونی چاہیے، مال کو تسی راضی ہو جائیو، بس تسی راضی رہنا۔ جی شاہ جی، میرے میں شاہ جی آخری میں بات صرف کر کے یہ میں خود ہی کہنا چلا تھا، جاتا ہوں، مجھے نہیں کام ہے، نہیں، مجھے بات کرنے دیں ذرا۔ میری عرض تھی کہ میں بس سرکار کے غلاموں میں اپنا نام لکھوا لوں، بس اتنا میں نہیں چاہتا ہوں، وہ میں لکھا علامہ گیا، کی غرض نہیں وہ کرتا۔ لکھا گیا، آپ نہ بھی کہیں میرا لکھا کہنے کا گیا مطلب نا، یہ تھا، میرا کہنے کا میں مطلب یہ کہتا تھا۔ ہوں آپ نہ بھی کہیں، وہ لکھا گیا ہے، میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ضروری تو نہیں کہ بیان کریں تو پھر ہی لکھا جانا ہے نام، نہیں وہ تو لکھا گیا، جن کے لیے کیا ہے وہ تو ہے نا، وہ تو جانتے ہیں، وہ تو جانتے ہی ہیں نا۔ یہ تو چلو یہ 6 بندے ابھی بتا رہے ہیں، یہ شریف بھائی، تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں پتا، وہ میں جانتا ہوں، میرا مالک جانتا ہے، بس وہ تو میں جانتا ہوں۔ تو ضروری تو نہیں بھائی کہ مطلب کوئی بتایا ہی جائے، نہیں کوئی بات نہیں، گل ہی کوئی نہیں بچ ہے ہی کوئی نہیں۔ اور اگلی بات جو کرنی تھی میں نے یہ کہ ہمارا پھر فریضہ بنتا ہے کہ جن کو ہم کلمہ پڑھوائیں یا اسلام میں داخل کریں، ان کی پھر پیروی بھی کریں، ان کی پشت پناہی بھی کریں، ان کے آگے پیچھے رہیں، ان سے رابطہ مسلسل رکھیں، یہ نہ ہو کہ وہ پھر بہک جائیں، وہ اسلام کو ترک کر دیں، یا مطلب وہ کسی اور ہتھے چڑھ جائیں۔ تو یہ اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ چلو یہ مختصر بات کر کے میں پھر اجازت چاہوں گا۔ ایک قادیانی کو ہم نے کلمہ پڑھایا تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ مرزا جونیئر جیل میں کے تھے چڑھ گئے۔ مجھے اس چیز کا اتنا دکھ ہوا، اتنا دکھ ہوا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن بہرحال اس کے لیے دعا کی تھی میں نے، تے وہ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ اسی بندے نے پھر اس کا بائیکاٹ بھی کر دیا۔ اور تو یہ بات ہے کہ ہمیں پھر ان کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کی پیروی بھی کرنی ہے، ان کی پشت پناہی بھی کرنی ہے، ان کو دیکھ بھال بھی کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ بھائی وہ کسی دوسری طرف ہی چلے جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ مجھے اجازت دیں یار، مجھے جانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ریبل صاحب آئے نے، بسم اللہ کرا